આપણે છેલ્લા 3 દિવસથી આપણે જે પણ અધ્યયન ચાલુ છે તો એનું આપણે એક વખતે ગુજરાતીમાં ફરીથી રિવિઝન કરી લઈએ. આપણે સૌથી પહેલા દિવસે મેઇન ચર્ચા જે કરી એ વસ્તુમાં એ હતું કે શિક્ષા શેના માટે અને શિક્ષા આપણે જે કરીએ છીએ તો શિક્ષાનો મૂળ હેતુ શું છે, શિક્ષા ક્યાં, આપણે એ પ્રશ્નનો ક્યાંક ને ક્યાંક એ જવાબ લેવાનો આપણે ટ્રાય કર્યો હતો. એમાં સૌથી પહેલાં આપણે 4 અવસ્થાઓની એક વખતે વાત કરી કે પદાર્થ અવસ્થા, પ્રાણ અવસ્થા, જીવાવસ્થા અને માનવ અવસ્થા, જ્ઞાન અવસ્થા જે કહીએ. તો આપણે પોતે અત્યારે આપણા અંદર એ આકલન કરી શકીએ છીએ કે બીજી 3 અવસ્થાઓ એ એક રીતે સંતુલનમાં જ છે, પ્રકૃતિના સંતુલનમાં છે. માનવ જ એવો છે કે જે સંતુલનમાં નથી. માનવને હજુ સુધી આટલા વર્ષો પછી એ નક્કી નથી કરી શક્યો કે મારે શું ખાવું, કેટલું ખાવું, ક્યારે ઊંઘવું, કેટલું ઊંઘવું. એટલે આપણે અગર માનવ જાતને જોઈએ તો એ માનવ એ સંતુલનમાં નથી ને હવે એને પદાર્થ અવસ્થા, પ્રાણ અવસ્થા અને જીવ અવસ્થા જોઈએ તો એ સંતુલનમાં એ પોતપોતાની રીતે છે. હવે માનવ અવસ્થા જે છે એ પ્રાણ અવસ્થા જે છે તો એ બીજ વિધિથી હાલના લેવલે સંતુલનમાં છે. જીવ અવસ્થા જે કે પશુ પક્ષીની વાત કરીએ તો વંશ વિધિથી સંતુલનમાં છે. આપણી વાત કરીએ માનવની તો માનવ અત્યારે સંસ્કાર વિધિથી સંતુલનમાં આવી શકે એવી સંભાવના એક છે. એટલે સંસ્કાર વિધિને હાલના લેવલે પરંપરામાં લાવવા માટે જ શિક્ષા શેના માટે તો સંસ્કાર વિધિને પરંપરામાં લાવવા માટે જ શિક્ષાની જરૂરિયાત છે. બીજા દિવસે આપણે એ ટોપિક જોયો કે જિંદા રહેના અને જીના, આપણે સૌથી પહેલાં એની વસ્તુની વાત કરી અને જિંદા રહેના અને જીનાની જે વાત કરી તો એમાં આપણે શરીર માટે આજે હવે આપણે એટલા બધા ગઈકાલે આગળ વધી ગયા કે એના અંદર આપણે જે પણ હવે ડિસ્કશન કરીશું તો વધારે ક્લિયર થશે કે જિંદા રહેવામાં કેવી વસ્તુ છે કે શરીર રિલેટેડ જે પણ વસ્તુઓ છે એ બધી જ જિંદા રહેવામાં આવે છે. કે આહાર, નિંદ્રા, ભય, મૈથુન, જે પણ વસ્તુ આપણે કે પ્રજનન, એ જે પણ વસ્તુની વાત કરીએ તો એ બધી જ વસ્તુઓ જિંદા રહેવામાં આવે છે. જીવાની જરૂરિયાત અને જિંદા રહેવાને સુવિધા સાથેનો ડાયરેક્ટ કનેક્શન છે અને જીનાને સુખ સાથેનું ડાયરેક્ટ કનેક્શન છે. આપણે ગઈકાલે પરમ દિવસે એકદમ સ્પષ્ટતાથી જોયું કે સુવિધા અને સુખ એ બંને સંપૂર્ણ અલગ વસ્તુ છે. સુવિધા એ શરીરની જરૂરિયાત છે અને સુખ એ મારી જરૂરિયાત છે. સુવિધા જે છે એ મને નિરંતર નથી જોઈતી, એ જ્યારે શરીરને આવશ્યકતા છે ત્યારે જોઈએ છે અને સુખ જે છે એ મારી નિરંતર આવશ્યકતા છે અને મને નિરંતર જ જોઈએ છે. એવું નથી કે કોઈ પણ માણસ કદી એવું નહીં કે નહીં મને આટલો ટાઈમ સુખ જોઈએ, બીજો ટાઈમ દુઃખ જોઈએ છે. એટલે સુખ અને સુવિધાના વચ્ચેનું આપણે ડિફરન્સિએશન એ એકદમ ક્લિયરલી સમજ્યા. પછી આપણે એક પ્રસ્તાવ પર આવ્યા કે સ્વીકૃતિ કે ભાવ મેં જીના ही सुख है. સ્વીકૃતિ કે ભાવ મેં જીના ही सुख है એટલે એમાં આપણે જોઈએ તો અંદર કે ઘણા કન્ફ્યુઝન આપણને ઊભા થયા કે સ્વીકૃતિ એટલે કોની, સામેવાળાની કે મારી. તો અહીંયા આપણે ફક્ત સ્વીકૃતિ કે ભાવ મેં જીના ही सुख है ની જ્યારે વાત કરીએ છીએ ત્યારે સ્વીકૃતિ એટલે આપણા અંદરની સ્વીકૃતિની વાત છે. હું જે વસ્તુનું ડિસિઝન લઉં કે હું કોઈ પણ વસ્તુની અત્યારે વાત કરું છું તો એ મારા અંદર શું સ્વીકૃતિમાં ચાલુ છે એ વસ્તુમાં જો મારી સ્વીકૃતિઓએ જે ડિસિઝન લીધું તો એ સ્વીકૃતિ કે ભાવ મેં જીના सुख है એ કહેવાય છે કે જે ક્ષણે તમને હાલના લેવલે સ્વીકૃતિ હોય એ ક્ષણે તમને સુખનો અહેસાસ થતો અને જે ક્ષણે તમારી અસ્વીકૃતિ થાય એ ક્ષણે તમને દુઃખનો અહેસાસ થવાનો ચાલુ થાય છે. પછી આપણે એક બીજા ડેફિનેશન પર આગળ આપણે વધ્યા ગયા તો સમાધાન ही सुख है આપણે કીધું. હવે સમાધાન એટલે શું? તો સમાધાન એટલે આપણે ગઈકાલે સવારે સૌથી પહેલો જ પ્રશ્ન જોયો કે સમાધાનમાં આપણે પાછું કન્ફ્યુઝન ઊભું થયું હતું. એટલે ગઈકાલે સૌથી પહેલું એમને કીધું ક્યાં, ક્यों और कैसे का उत्तर ही समाधान है. क्या એટલે मैं क्या हूं, क्यों એટલે क्यों जीना है, कैसे जीना है. આનો ઉત્તર આપણા અંદર જો એકદમ ક્લિયરલી હોય તો આપણા અંદર સમાધાન છે. એનો જો ઉત્તર ના હોય, હું જે કરી રહ્યો છું, જે પણ કરી રહ્યો છું અત્યારે, એ અત્યારે શેના માટે કરી રહ્યો છું અને એનો અલ્ટિમેટ હેતુ શું છે, જો એની સ્પષ્ટતા ના હોય તો અત્યારે બેઝિકલી આપણા અંદર સમાધાન નથી. એ સમાધાનની આપણે ગઈકાલે સવારે સૌથી પહેલાં વાત કરી. એના પછી આપણે જે મેઇન કન્ટેન્ટના અંદર ઉતરવા ગયા તો આપણે એ વાત કરી કે વ્યવસ્થા એ 5 જગ્યા પર જોવાની વાત છે કે એક તો સ્વયંમાં વ્યવસ્થા, બીજું પરિવારમાં વ્યવસ્થા, ત્રીજું સમાજમાં વ્યવસ્થા, ચોથું પ્રકૃતિમાં વ્યવસ્થા અને પાંચમું જે છે એ અસ્તિત્વમાં વ્યવસ્થા.
એટલે આપણે ગઈકાલે સૌથી પહેલો જ ટોપિક ચાલુ કર્યો કે સ્વયંના અંદર વ્યવસ્થા એટલે શું. તો સ્વયંના અંદર જ્યારે વ્યવસ્થામાં જોવા ગયા તો આપણે આપણી જરૂરિયાતો બધી આપણે બોર્ડ ઉપર લખાવી, એને આપણે બે ભાગમાં અગર બાયફર્કેટ કરતા ગયા તો એક એવું ખબર પડી કે અમુક જરૂરિયાતો જે છે એ ભૌતિક જરૂરિયાતો છે અને અમુક જરૂરિયાતો છે એ ભાવની જરૂરિયાતો છે. આપણે અહીંયા આગળ બોર્ડમાં બે બાજુ લખેલું જ છે કે જે ભૌતિક જરૂરિયાતો છે એ મારા શરીરની જરૂરિયાતો છે, એને આપણે સ્પષ્ટ રીતે જોઈ પણ શકીએ છીએ. અને જે શરીરની જરૂરિયાતો છે એ નિરંતર નથી. મને જમવાનું જોઈએ તો જે વખતે ભૂખ લાગે છે એ વખતે જમવાનું જોઈએ છે. અને ભાવની જરૂરિયાત છે એ નિરંતર છે. કોઈ માણસ એવું નહીં કે મને સુખ નિરંતર નથી જોઈતું, કોઈ માણસ એવું નહીં કે મને સન્માન નિરંતર નથી જોઈતું, કોઈ માણસ એવું નહીં કે મને વિશ્વાસપૂર્વક મારે જીવવું છે તો એ મારે એની નિરંતરતા નથી જોઈતી. અને અહીંયા આગળ આપણે જોઈએ તો જે ભૌતિક જરૂરિયાતોની વાત કરીએ છીએ, ભૌતિક જરૂરિયાતોમાં એકદમ સ્પષ્ટ બાયફર્કેશન છે કે આપણને એ શરીરના રિલેશનમાં જ ભૌતિક જરૂરિયાતો છે અને ભાવની જરૂરિયાતો. હવે એના પછી આપણે આગળ જોયું તો ભૌતિક જરૂરિયાતો અને જે ભાવની જરૂરિયાતો છે એ બંને વચ્ચેના સ્પેસિફિક ડિફરન્સિએશન અમુક પોઈન્ટ્સને લઈને જોયા. કે એક તો માત્રાને લઈને જોયા કે આપણે અત્યારે વાત કરીએ છીએ તો ભૌતિક જરૂરિયાતો એ માત્રાથી એક માત્રામાં જોઈએ અને હાલના લેવલે કે જે આપણે ભાવની જરૂરિયાતની વાત કરીએ એ આપણને માત્રામાં ન જોઈએ, એ નિરંતર જોઈએ, એ કોન્સ્ટન્ટ જોઈએ અને એ રીતે જોઈએ. અને આપણે અત્યારે જ્યારે વાત કરીએ ત્યારે ભૌતિક જરૂરિયાતોમાં આપણે કોન્સ્ટન્ટ જ્યાં સુધી આપણને એ જ નથી ખબર કે સુવિધા બરાબર સુખ છે, એના પ્રમાણે આપણે હું તમને કહું કે એક બ્રહ્મા જીવતા હતા એ વખતે આપણી આખી જ જીવનશૈલીને એ બધું કઈ રીતે થઈ ગયું તો આપણે એને પણ અગર સ્પષ્ટતાથી જોઈ શકીએ તો એ રીતે થઈ ગયું હતું કે નવી વસ્તુઓ ટ્રાય કરવી, ક્વોન્ટિટી અને ક્વોલિટીમાં જતું રહું. આ ટાઈપનો ટેસ્ટ ભાવે છે તો બીજી કંઈક વસ્તુ, બીજી કોઈ વાનગી બનાવીને બીજી કોઈ ટેસ્ટથી હું અત્યારે મારી જાતને તૃપ્ત કરી કાઢું, પણ એ તૃપ્તિ મળી નહીં, આપણે કરી ના શક્યા. પછી બીજી બાજુ આપણે વાત કરીએ તો બે રસગુલ્લા ખાતા તો 4 રસગુલ્લા ખાતો થયો, 4 થી 8 ખાતો થયો, પણ તોય હાલના લેવલે 8 પછી એ તૃપ્તિ નથી મળતી કોન્સ્ટન્ટ, જે આપણે નિરંતરતાની વાત કરીએ છીએ એ નથી મળતી. પછી બીજી કે જે ભૌતિક જરૂરિયાતો છે એ સામયિક છે, એટલે સામયિક એટલે એક સમયે જોઈએ છે અને જે ભાવની જરૂરિયાતો છે એ નિરંતર જોઈએ છે આપણને. પછી ભૌતિકની વાત કરીએ તો ભૌતિક વસ્તુઓ જે પણ છે એ બધી જ વસ્તુઓ ભાર છે, ભાવ છે એ ભારહીન છે, ભાવની વસ્તુઓ જે છે એ બધી ભારહીન છે. પછી આપણે પૂરી કઈ રીતે કરી જાય તો ભૌતિક જરૂરિયાતો માટે શ્રમ કરવો જ પડશે અને એ શરીરની જરૂરિયાતો છે ને એ શ્રમ વગર થશે જ નહીં. સામે ભાવની જરૂરિયાતો જે છે એ વસ્તુ એ સમજથી જ આવશે. ખરીદ सकते हैं, खरीद नहीं सकते हैं, બરાબર. ભૌતિક જરૂરિયાતોને આપણે સુખ સુવિધા કીધું અને આને સુખ કીધું. હવે એના જે લાસ્ટ ડિફરન્સિએશન છે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે માણસ અત્યારે આપણે જોઈએ તો માનવ જાતિ ઓવરઓલ આખી એક છે, પણ એ માનવ જાતિની સુવિધાઓની જ્યારે વાત કરીએ છીએ ત્યારે આવશ્યકતાઓ અને સુવિધાઓ એ દરેક માણસ માટે સેમ નથી. દરેક માણસને પોતાના શરીર માટે શું સુવિધાઓ જોઈએ છે, એની પોતાની આવશ્યકતાઓ છે એ અલગ છે, ભિન્ન છે. જેમ કે પણ જ્યારે આપણે સુખની વાત કરીએ છીએ, જ્યારે આપણે ભાવની વાત કરીએ છીએ ત્યારે દરેક માણસ સમાન છે. દરેક માણસને સુખ જોઈએ છે અને નિરંતર જોઈએ છે, એ રીતે દરેક માણસ સમાન છે. આપણે એ વસ્તુની આગળ વાત કરી અને એમાં પછી આપણે આગળ જ્યારે જોયું તો એમાં આપણને એ ખબર પડી કે હા, પછી આપણે આની વાત કરી કે ધર્મની વાત કરી તો ધર્મના કેસમાં આપણે જે વાત કરી તો ધર્મના કેસમાં જે પદાર્થ અવસ્થા છે તો એ પદાર્થ અવસ્થાનો ધર્મ શું છે તો પદાર્થ અવસ્થાનો ધર્મ એ હોવું છે. હોવું એટલે ગઈકાલે એમને બહુ એક સરસ એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે આ પેન છે તો આ પેન અહીંયા આગળ પડી રાખું હું અને મૂકી રાખું તો એ પેન ત્યાં પડી રહેશે. હું ગમે તેટલા વર્ષો પછી આવીશ, એ વસ્તુ જે છે એનો કદાચ આકાર, એનો રૂપ, એની એ બધી વસ્તુઓ બદલાઈ ગઈ હશે, પોસિબલ છે, પણ એ વસ્તુ એઝ અ પાર્ટિકલ કે એઝ અ ભૌતિક વસ્તુ જે છે એ ત્યાંની ત્યાં રહેશે. કદાચ પોસિબલ છે કે હું તમને કહું કે વર્ષો પછી આપણે કાર્બન જોઈએ તો કાર્બન ડાયમંડમાં કન્વર્ટ થઈ જાય છે, પણ વસ્તુ એઝ અ જે આપણે એટમ કે એ વસ્તુની વાત કરીએ છીએ એ ત્યાં આગળ છે, એનો હોવું એનો ધર્મ છે. પ્રશ્ન શું? અવસ્થાની વાત કરીએ છીએ તો પ્રાણ અવસ્થાના કેસમાં આપણે જ્યારે કહીએ છીએ તો પુષ્ટિ ધર્મ છે.
પુષ્ટિ એટલે કે હોવું અને પુષ્ટિ એ બંને એક સાથે છે. એટલે જ્યારે આપણે ગુરु मूल्य અને लघु मूल्यની વાત કરીએ છીએ તો ગુરु मूल्य में लघु मूल्य समाया ही होता है. એ રીતે અગર જોઈએ તો પ્રાણ અવસ્થા એ પદાર્થ અવસ્થાને એક આગળનો સ્ટેજ છે. તો પ્રાણ અવસ્થાના અંદર પદાર્થ અવસ્થાનો જે ધર્મ છે એ છે જ. અને પ્રાણ અવસ્થામાં અત્યારે પુષ્ટિ આવે છે કે આપણે કોઈ પણ એક બીજ વાવીએ, જે પણ ઝાડનો બીજ વાવ્યો હશે એમાંથી એ જ ઝાડ નીકળશે, એમાંથી કદી બીજું ઝાડ નહીં નીકળે. આપણે ગઈકાલે જે એ વસ્તુ પર ચર્ચા કરી. પછી જીવ અવસ્થાની વાત કરીએ તો જીવ અવસ્થાનો ધર્મ એ પુષ્ટિ સાથે સાથે હોવું તો છે જ, પણ જીને કી આશા. દરેક કોઈ પણ પ્રાણી કે કોઈ પણ પશુ પક્ષીને આપણે આપણી રીતે જોઈએ તો એ એક જીવાની આશા સાથે જ છે. એ જે કંઈ પણ કરે છે એ પોતાના જીવનને કે એ પોતાના લાઈફ પીરિયડને, લાઈફ સ્પેનને ટકાઈ રાખવા માટે જે પણ મહેનત કરે છે કરી રહ્યું છે. वो जीने की आशा के साथ है ही. અને એ જ રીતે જ્યારે આપણે માનવની વાત કરીએ છીએ તો માનવ जीने की आशा के साथ है, वो है उसका धर्म, लेकिन उसके साथ साथ वो सुखधर्मी है. માનવના કેસમાં આપણે જોઈએ તો માનવના કેસમાં આપણે અત્યારે જઈએ છીએ તો માનવ સુખધર્મી છે. જ્યારે ધર્મને આપણે ડેફિનેશન શું આપ્યું તો ધર્મને આપણે સાદી ભાષામાં એક ડેફિનેશન એ આપ્યું કે जिससे जिसको अलग नहीं किया जा सकता, જે જેનાથી દૂર ના થઈ શકે, જે એના સાથે જ રહે અને એના અંદર જ રહે એ જ ધર્મ. એને આપણે એ રીતે ડિફાઇન કર્યું. એના પછી આપણે આગળ ગઈકાલે વાત કરી તો માણસમાં જ્યારે અંદર આપણે જોઈએ તો આપણા અંદર શું શું ચાલી રહ્યું છે. તો આપણા અંદર આશા છે, આપણા અંદર વિચાર છે અને આપણા અંદર ઈચ્છા છે. આશા વિચાર ઈચ્છા જ્યારે આપણે કહીએ ત્યારે સરળતાથી ફટાક દઈને અંદર ઉતરી જાય કે ઓકે આશા છે, મારામાં વિચાર પણ છે અને મારામાં ઈચ્છા પણ છે. એ ત્રણને આપણે સંપૂર્ણ એ ત્રણને ભેગા મળીને આપણે એને કીધું કે કલ્પનાશીલતા. માનવ બીજી બધી વસ્તુઓ કે જીવ કે અત્યારે બીજા બધા પશુ પક્ષીઓથી જુદો કઈ રીતે છે તો માનવના અંદર એક વસ્તુ આ એક્સ્ટ્રા છે કે જે એના શરીર થ્રુ વ્યક્ત થઈ શકે છે. એક તો કલ્પનાશીલતા અને કર્મ સ્વતંત્રતા. માનવનું મેધસ એ એટલું ડેવલપ્ડ છે કે એના અંદર એ કલ્પનાશીલતા કરી શકે છે અને એનું શરીર એટલું વિકસિત છે કે કર્મ સ્વતંત્રતા કરી શકે છે. કર્મ સ્વતંત્રતા અને કલ્પનાશીલતા. તો જ્યારે આપણે કર્મ સ્વતંત્રતાની વાત કરી ત્યારે તો આપણે બધા જોઈ જ શકીએ છીએ કે ભાઈ માણસે કર્મ સ્વતંત્રતાના લીધે હું તમને કહું આટલી ઊંચી બિલ્ડિંગો બનાવી દીધી અને પોતાના જે પણ આપણે અત્યારે ભૌતિક જીવનમાં હું તમને કહું કે આપણે આગળ વધ્યા છીએ, આપણે સ્પેસમાં જતા રહ્યા કે આ બધી જ વસ્તુ આપણા કર્મ સ્વતંત્રતાના લીધે છે. જ્યારે કે કલ્પનાશીલતાની વાત કરીએ તો ઈચ્છા, વિચાર અને આશાની જે વાત છે તો એ કલ્પનાશીલતા એને આપણે કીધું કલ્પના. એમાં આપણે જ્યારે ડિટેલમાં ગયા તો એ કલ્પના એના અંદર એ જે કલ્પના જે છે તો આશા, વિચાર, ઈચ્છા એ પણ એક ક્રિયા છે અને એ ક્રિયાઓ બધી થઈ રહી છે. તો એ શેના લીધે થઈ રહી છે અને કઈ રીતે થઈ રહી છે આપણે એને સમજ્યા. માનવના અંદર જીવનમાં 10 ક્રિયાઓ છે. માનવના અંદર નહીં, કોઈ પણ જીવનમાં 10 ક્રિયાઓ છે અને 10 ક્રિયાઓના અંદર માનવના અંદર એક અત્યારે જે આપણે સ્થિતિમાં છીએ એમાં 4.5 ક્રિયાઓ વ્યક્ત થાય છે. 4.5 ક્રિયાઓ ઓછી થઈ શકે પણ 4.5 ક્રિયાઓ અત્યારના લેવલે વ્યક્ત થઈ રહી છે. એ 4.5 ક્રિયાઓ કઈ છે તો એક તો ચયન સાથે આસ્વાદન, પછી તુલન, વિશ્લેષણ. તુલનના કેસમાં આપણે જોયું તો હજી આપણે અડધી જ તુલનની અત્યારે આપણે ક્રિયા જે છે એને વ્યક્ત કરી શકીએ છીએ. પ્રિય, હિત અને લાભમાં. અને એના ઉપર જે છે અત્યારે એ ચિત્રણ. મારા અંદર જે પણ ચિત્રણ થઈ રહ્યું છે એ ચિત્રણનું સતત તુલન વિશ્લેષણ ચાલુ છે. એના પ્રમાણે હું સિલેક્શન એ આસ્વાદન કરું છું અને એના હિસાબથી જ મારું કાર્ય થાય છે. એ જ મારું ચયન. આપણે અત્યારે એક નાનું એક્ઝામ્પલ લઈએ તો સવારે હું તમને કહું કે આપણે મકાઈ બધા ખાતા હતા તો મકાઈના કેસમાં પણ આપણે લઈએ તો મકાઈ લેવી કે ના લેવી, મકાઈ ખાવી છે એનું પણ ચિત્રણ અત્યારે અંદર મગજમાં છે. મકાઈ ખાવા ગયા તો મકાઈ લીધી, એના પછી ત્યાં આગળ લીંબુ, મીઠું, મરચું પડેલું છે તો એ લીંબુ, મીઠું, મરચું નાખવું કે ના નાખવું એનું પણ તુલન થઈ ગયું. ના કેમ નાખવું તો પણ એનું વિશ્લેષણ થઈ ગયું ને નાખવું તો પણ કેમ નાખવું એનું પણ એક વિશ્લેષણ અંદર થઈ ગયું. એ બધાનું પોતપોતાની રીતે થયું અને એમાં આપણે એક રુચિમૂલક આપણે એક આસ્વાદન કર્યું કે નહીં હા મને આ ભાવે છે એટલે મેં લીધું. જો મીઠું, મરચું, લીંબુ ભાવતું હશે અને એના પ્રમાણે લીધું હોય તો આપણે રુચિમૂલક આસ્વાદન કર્યું. મીઠું, મરચું ભાવતું હોય તો પણ આપણે ના લીધું કે નહીં મારા માટે મીઠું સારું નથી, મને બીપી છે અને બીપી ઘટાડવા માટે જો આપણે મીઠું, મરચું ના લીધું હોય તો એ આપણું લક્ષ્યમૂલક આસ્વાદન થયું. અને એ લક્ષ્યમૂલક આસ્વાદન પછી આપણે જોઈએ તો એ આપણે એના હિસાબથી ચયન કર્યું કે ભાઈ મેં લીધું કે ના લીધું, મેં લીધું કે ના લીધું એનું મેં ચયન કર્યું. એટલે ગઈકાલથી આપણે આખી જે 3 દિવસની પ્રક્રિયા છે એની સમરીમાં આ વસ્તુ છે. હવે પ્રશ્નો હોય તો આપણે પ્રશ્નોનું લઈએ. मेरा क्वेश्चन यही था कि जो पदार्थ अवस्था आपने बताई ना बॉल पेन, तो उसको जो नाश होता है तो भी अणु रहता है,
तो प्रवाही के स्वरूप में हम पेट्रोल डीजल को देखते हैं तो हम गर्मी में रखते हैं तो उड़ जाता है, या तो ईंधन के स्वरूप में बल जाता है, तो वो कहाँ पर रहता है? हाँ, पर नहीं, आंसर क्वेश्चन सही है। जैसे हम लोगों को ये चीज़ समझनी होगी कि जब भी हम लोग किसी भी पेट्रोल डीजल की भी जब हम लोग कंबशन की बात करते हैं या तो फिर उसका जो धुआं निकलता है, तो प्रैक्टिकली जो अणु परमाणु है उसका फॉर्म चेंज हो जाता है, लेकिन वो धुएं के उसमें रहता ही है, उसका फॉर्म चेंज हो जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि जब कंबशन होता है तो कंबशन में से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और ये सब चीज़ें निकलती है, तो पानी भी हवा के रूप में निकल जाती है क्योंकि उसका टेम्परेचर उतना हाई होता है। और जब हम लोग CO2 की बात करते हैं कि कार्बन एमिशन हो रहा है, तो कार्बन एमिशन क्या है, वो कहाँ से आ रहा है, वो धुआं अंदर से कहाँ से आ रहा है, वो एक्चुअली में कंबशन के थ्रू ही कंबशन हुआ और वो कंबशन होने के बाद वो धुएं के फॉर्म में हो गया। जैसे पानी है, तो पानी को हम लोग उबालते हैं, तो पानी को उबालते हैं तो पानी एक समय पे अपने सामने है, लेकिन उसके बाद अगर देखते हैं तो उसमें अंदर पानी नहीं रहता, पूरा उबल जाता है, तो हमको दिखता नहीं है। वो हमारी जो आंखें हैं उसको वो देख नहीं पाती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि पानी नहीं है। अगर उसको वापस कंडेंस किया जाए तो वो पानी ही आएगा। जब भी उस पानी को जो वराળ થઈ જાય છે, પાણીની જે વરાળ થઈ જાય છે, એ વરાળ એને આપણે જો એને ઠંડી પાડીએ તો પાછું પાણી જ આવશે। પણ જેમ પાણી વરાળમાં થાય છે અને વરાળ પાણીમાં થાય છે, એ એક નોર્મલ પ્રક્રિયા છે અને એ બેઝિકલી એક રિવર્સિબલ પ્રક્રિયા છે। પણ જ્યારે આપણે પેટ્રોલ અને ડીઝલની વાત કરીએ છીએ તો પેટ્રોલ અને ડીઝલને અત્યારે આપણે સળગાઈ મારીએ છીએ એટલે ધુવાડામાં કન્વર્ટ થઈ ગયું। અમે હું ધુવાડાને કન્ડેન્સ કરું તો મને પેટ્રોલ ડીઝલ નહીં મળે, કારણ કે એનું આખું એક રાસાયણિક પ્રક્રિયાથી એનું આખું એક ચેન્જ થઈ ગયું છે ફોર્મ। એટલે એ એક આપણે જ્યારે ભૌતિક અને રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ છે એના હિસાબથી જ્યારે જે ફોર્મ ચેન્જ થાય છે એના હિસાબથી, પણ જે પણ છે એ રહે છે, એનું ખાલી રૂપ બદલાય છે। માઇક ત્યાં आपने जैसे बोला कि हम पानी को उबालते हैं तो उसका वराल में परिवर्तन हो जाता है, तो पानी नष्ट नहीं होता है, ये बात सही है? नहीं, ऐसा नहीं है। जब पानी का भी रूप हम लोग चेंज कर देंगे, जब पानी फॉर एग्जांपल पौधों में चला जाता है, हम लोग उसकी बात करते हैं कि जैसे हम लोगों ने किसी ये क्या बोलते हैं कि प्लांट को अगर बोया है, तो पौधे को बोया है तो उसके अंदर जब पानी ले लेते हैं, तो पौधा जब वो पानी को ले लेता है तब उसका अंदर उसका रूप चेंज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि पौधे के अंदर पानी बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन उसी मात्रा में रहेगा वो ज़रूरी नहीं है। जैसे हम लोग अभी डीजल और इसकी बात कर रहे हैं पेट्रोल की, तो डीजल और पेट्रोल का जब रूप पूरी तरह चेंज हो जाता है तो वो उसी फॉर्म में निकलता है, CO2 या तो फिर ये अपना क्या बोलते हैं कि वाटर के फॉर्म में वैसे निकलता है। तो उसी को अगर हम लोग जब भी पानी को देखते हैं तो जब पानी को उबालते हैं उस प्रक्रिया की हम लोग बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पानी का फॉर्म चेंज नहीं हो सकता है। एक दूसरी बात है सर, ये जो पानी है हम अलग अलग तरीके से उसका उपयोग करते हैं, लेकिन हमने ये देखा कि पानी धरती पर से खत्म हो रहा है, पीने का पानी, यानी कि जो पानी ऊपर था वो अभी नीचे जा रहा है, जमीन में उसका स्थल नीचे जा रहा है। तो ये पानी जा कहाँ रहा है? हम तो उसका यूज करते हैं, पानी तो धरती पर ही है, लेकिन वो जा कहाँ रहा है वो मुझे पता नहीं चलता। नहीं, मतलब पानी तो धरती पर है ही, लेकिन उसके केस में अगर हम लोग पानी की पूरी साइकिल देखेंगे तो पानी, जैसे एक उसको सिंपल एग्जांपल में लेते हैं तो पानी जितना रिफिल हो पाता है एक रेनी सीजन में या तो फिर एक ચોમાસાની એક સિઝનમાં પાણી જેટલું રિફિલ થઈ શકે છે એના કરતાં વધારે માણસ ઉપયોગ કરવા લાગ્યો છે, એટલે પહેલાં તો વોટર ટેબલ નીચે જાય છે, આપણે એ સમજવાની જરૂર છે। બીજી વસ્તુ કે એ રિફિલ થાય એ અત્યારે હું તમને કહું કે નીચે જાય એટલે આપણે પાણીને પછી જ્યારે પડે છે ત્યારે પણ આપણે બધું રિફિલ નથી કરી શકતા। બધું ને બધું હું તમને કહું કે ક્યાંક ના ક્યાંક નદીઓના પ્રવાહ કે થ્રુ એના થ્રુ આપણે પાણી દરિયામાં જતું રહે છે। એનો મતલબ એમ નથી કે પાણી જતું રહે છે। આપણને પ્રોબ્લેમ કઈ વસ્તુ, પાણી 70% ઉપર હું તમને કહું કે દુનિયા ઉપર પાણી જ છે,
પ્રશ્ન એ છે કે આપણને અત્યારે ખારું પાણી નહીં, આપણને તો ચોખ્ખું પાણી જોઈએ છે. એ ચોખ્ખું પાણી જે વરસાદથી આવે છે એ બધું આપણે અત્યારે એને કલેક્ટ નથી કરી શકતા અને જતું રહે છે. અને એને આપણે, હું તમને કહું કે એના વોટર ટેબલ આપણે રિચાર્જ નથી કરી શકતા, અને વોટર ટેબલ રિચાર્જ નથી કરી શકતા અને એના બદલે આપણે હજી ખેંચ કરીએ છીએ. જેટલું અંદર જાય છે દર વર્ષે એનાથી વધારે ખેંચીએ છીએ, જેટલું અંદર જાય છે એનાથી વધારે ખેંચીએ છીએ. એટલે પાણી અંદર જમીનમાંથી નીકળ્યા રાખે છે અને ઓવરઓલ હું તમને કહું કે આપણે પ્રકૃતિને અસંતુલિત કરીએ છીએ. અને પાણી પછી જ્યારે વરસાદ થ્રુ પડે છે એ તો પછી અંદર આપણે જો એને ડેમ થ્રુ બનાવ્યું હોય તો ત્યાં આગળ આપણે રોકી રાખ્યું છે, કાં તો પછી એ સીધું દરિયામાં જતું રહે છે. हम बहुत सारी मेटल निकाल लेते हैं ज़मीन से, बहुत सारा कोयला निकालते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ निकलती है, तो वो जो जगह खाली हो रही है वहाँ पर कुछ तो भरेगा, तो पानी वहाँ चला जाता है और ऐसे पानी का लेवल नीचे जा रहा है. बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया चर्चा रही, बढ़िया समरी भी रहा. और देखिए, कोई चीज को पकड़ने के लिए जैसे इन्होंने धर्म कहा. हाँ जी, कोई बोल रहा? अच्छा. तो जैसे धर्म कहा, तो धर्म में धर्म बना रहे, उसके लिए एक और चीज आती है, स्वभाव. और धर्म व्यक्त कैसे होती है? स्वभाव से. वो दोनों ही बातें हैं. तो जो ये जो सेटल कर रहे थे कि पेट्रोल जल जाता है फिर धुआं बन जाता है, तो एक्चुअली पदार्थ अवस्था का जो धर्म है उसके स्वभाव के साथ है. अभी उसकी चर्चा नहीं हुई थी इसलिए आप नहीं रखे होंगे, लेकिन मैं तो रख दूंगा. मेरे पास अधिकार है. तो स्वभाव उसका संगठन विघटन होता है. तो एक्चुअली जब हम पदार्थ को उपयोग करते हैं, पेट्रोल को जलाते हैं, पानी को गर्म करते हैं, तो क्या होता है? विघटन होता है. कोई ताप बढ़ाए तो विघटन हो गया. फिर किसी समय संगठन होता है. कोई जरूरी नहीं है संगठन पानी के रूप में होगा. भाई हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हो गया तो किसी और संगठन में चला जाएगा. ऐसी संभावना है कि नहीं है? अगर हमने पानी को, माने पानी अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया तो हाइड्रोजन अलग संगठन में आ जाए, ऑक्सीजन अलग संगठन में आ जाए, तो पानी खत्म भी हो सकता है. लेकिन इसका मतलब नहीं है अस्तित्व में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन खत्म हो गया. हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो उसमें स्वभाव होता है संगठन और विघटन. धर्म बने रहने के लिए स्वभाव होता है. स्वभाव यानी स्वीकृत भाव. तो पदार्थ का स्वीकृत भाव है संगठन और विघटन. पदार्थ का अगर देखेंगे तो संगठन या संगठन बोलते हैं. संगठन और विघटन. ठीक है. तो हमने पेट्रोलियम को जलाया तो क्या हुआ? तो उसके अंदर पेट्रोलियम में क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन होता है. इसीलिए उसको ऑर्गेनिक बोलते भी हैं, कार्बनिक पदार्थ बोलते हैं. तो कार्बन और हाइड्रोजन टूटता है तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और जो पानी है वो ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर वेपर. तो विघटन हो गया. अब विघटन हो गया तो अब जरूरी नहीं है कि पेट्रोलियम के रूप में फिर संगठन होगा, क्योंकि पेट्रोलियम के रूप में जो संगठन हुआ है उसमें प्रकृति का बहुत बड़ा श्रम लगा है, लाखों साल का, करोड़ों साल का, धरती के अंदर. तब वो पेट्रोलियम के रूप में संगठन हुआ है. उसको हमको विघटन करना आ गया, लेकिन पेट्रोलियम के रूप में संगठन करना नहीं आया है. हम उतना दाब क्रिएट भी नहीं कर सकते कि जिससे वो संगठन कर पाए. तो अगर हम उसको जलाते ही रहे, विघटन करते ही रहे, तो अस्तित्व में कार्बन रहेगा, अस्तित्व में हाइड्रोजन भी रहेगा, पेट्रोलियम नहीं रहेगा. कार्बन हाइड्रोजन नहीं खत्म होने वाला है. इतनी सी बात है. ठीक है. तो चूंकि भाई स्वभाव पे बात नहीं करना चाह रहे थे, उनको लगा कंटेंट आगे बढ़ जाएगा. लेकिन मैं कर दिया. ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छा. कैसे हैं? हाँ, बढ़िया हैं, सुखी हो गए.
देखिए बढ़िया कि अब लाइन खिंच गई है, क्या सुखी हो गए? हाँ जी, क्योंकि मानो तो जैसे किसी ने हमसे पूछा, मैं पिछली बार जब आया था यहाँ सतलासना में, तो पालनपुर से उसमें बैठा ट्रेन में, तो पालनपुर के बाद अगला स्टेशन आता है माउंट आबू, आबू रोड। तो वहाँ बहुत सारे लोग चढ़े, वो जो ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए लोग हैं, तो एक दो सीट हमारे भी उसमें खाली थी, तो उसमें भी लोग आए। तो अपनी आदत है कि एक दो किताब रखते हैं अपने साथ, जैसे व्यवहार दर्शन, अनुभव दर्शन कुछ रखते हैं, तो उसको खोल के पढ़ना शुरू करते हैं। तो किसी को लगा कि ये कुछ जैसे दर्शन लिखा है ना उसमें, कर्म दर्शन, अनुभव दर्शन, तो उनको लगा कोई स्पिरिचुअल बात है, तो वो बात करना शुरू किए। तो वो बोले कि आप ये बताइए रहस्य क्या है। क्या पूछे? आप बताइए रहस्य क्या है। हमने कहा किसके लिए? भाई एक रहस्य तो ये है कि मैं किसी चीज के नियम को नहीं जानता, वो रहस्य है। जैसे मैं पंखा आज के पहले देखा नहीं हूं, अगर मैं पंखा आज के पहले नहीं देखा और इस कमरे में घुसा और उस कुर्सी पे बैठा, तब तक किसी ने पंखा चला दिया, तो मैं तो डर जाऊंगा देख के। ये क्या हो गया? तो क्या है, उस नियम को मैं नहीं जानता, तो मेरे लिए वो रहस्य है। तो बोले नहीं, मानव के लिए अंतिम रहस्य क्या है? उनका अगला प्रश्न आया। मैंने कहा अंतिम रहस्य यही है कि मानव सुबह से शाम तक पूरी जिंदगी जो भी काम करता है वो सुख के लिए करता है, लेकिन सुखी होता नहीं है। यही रहस्य है। रहस्य है कि नहीं है? हम सारा काम सुख के लिए करते हैं, अब सुखी हो जाएंगे, अब सुखी हो जाएंगे। जैसे बच्चा बोलता है बड़े होंगे तो सुखी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बड़े तो मौज में रहते हैं, बाहर भी चले जाते हैं, उनकी बात सब मानते हैं, मेरी बात कोई नहीं मानता। हाँ, बच्चों को लगता है माता पिता की बात हमारे सब भाई बहन मानते हैं, मेरी बात कोई नहीं मानता, तो मैं भी जब बड़ा हो जाऊंगा सुखी हो जाऊंगा। फिर वो स्कूल जाता है, हाँ, फिर उस देखता बाबा पहले अपने पिता माता को बड़ा मान लेता है, इनकी बात सब मानते हैं। फिर दादी बाबा मिलते हैं, तो देखता है दादी बाबा की बात मेरे माता पिता भी मानते हैं। तो उसको लगता है जब बड़े हो जाएंगे दादी बाबा होंगे तब हम सुखी हो जाएंगे। फिर स्कूल जाता है, तो स्कूल में देखता है कि जो टीचर हैं उनके आगे इनके दादी बाबा भी प्रणाम करते हैं, उनकी बात को भी मानते हैं। तो बोलता है अच्छा, इसका मतलब टीचर बड़ा है। तो क्या है, बात मानने को सुख से जोड़ के रखा रहता। तो सोचता बड़े हो जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। फिर युवा होता है, तो लगता है नौकरी मिल जाएगी तो सुखी हो जाएंगे, बड़ी वाली नौकरी मिल जाएगी तो सुखी हो जाएंगे। फिर सोचता है शादी हो जाएगी तो सुखी हो जाएंगे। फिर सोचता है किसी शहर में सेटल हो जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। फिर सोचता है हमारे भी बच्चे हो जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। फिर सोचता है उन बच्चों को पढ़ा लिखा लेंगे और वो कहीं किसी पद पे पहुंच जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। ऐसा करते करते उसका जाने का समय आ जाता, उसको पता ही नहीं चलता हम सुखी हुए कि नहीं हुए। तो ये रहस्य है कि नहीं है? बचपन से, पैदा होने से लेके मृत्यु पर्यंत वो जो भी काम करता है, कम से कम ये अगर नहीं सोचा, मतलब ये सूचना नहीं है कि सुखी होने के लिए करता है, तो ये तो सूचना ही है कि दुखी होने के लिए नहीं करता। भाई उल्टा वाली सूचना है, हम कोई भी काम दुखी होने के लिए करते हैं? नहीं करते। ठीक है, हम सुखी होने के लिए करते हैं अगर हमारा ध्यान नहीं गया है, लेकिन कम से कम दुखी होने के लिए तो नहीं करते। लेकिन होते दुखी हैं बार बार। पैसा कमा के देख लिया, सुविधाएं जुटा के देख लिया, बड़ी गाड़ी भी ला दिया, विदेश भी घूम लिया, जहाज में उड़ लिया, हर तरह के कपड़े पहन लिए, हर तरह के जूते पहन लिए, पद भी मिल गया, ज्वेलरी भी आ गई, सब आ गया, फिर भी सुखी नहीं हो रहे, फिर भी कम है। क्या कम है? क्या कम है? तो पता नहीं क्या कम है। जिसके पास सारी सुविधा हो गई, अगर वो सुखी नहीं है तो उनसे पूछिए क्या कमी रह गई, क्या कम है, तो उनको भी पता नहीं है कम क्या है। ठीक है, तो कम क्या है वो पता नहीं है, लेकिन चाहते सुख है। तो रहस्य क्या हो गया मानव के लिए?
यही रहस्य मानव के लिए कि सारी जिंदगी सारा प्रयास सुखी होने के लिए, और हो नहीं पाते। सुखी होने मतलब निरंतर, ऐसा नहीं हम कभी सुखी नहीं होते हाँ, नहीं तो कहेंगे आप झूठी ब्लेम लगा रहे हैं। मैं तो सुबेरे सुखी हुआ था जब बढ़िया वाला नाश्ता किया था, आप बोल रहे सुखी नहीं हुए। तो सुखी होते रहते हैं, ऐसा नहीं है। कल यहां ग्राफ बनाया था कि सुखी होते हैं, कभी नहीं होते हैं। मतलब होते ही हैं, कभी कभी होते हैं, लेकिन उसको बना के नहीं रख पाते। हम चाहते क्या है? उसकी निरंतरता। वो निरंतरता हमको नहीं मिलती, इतनी सी बात है तो इस शिविर में आके क्या सूचना मिलती है कि सुखी होने वाली जो इकाई है वो कोई अलग चीज है, वो शरीर नहीं है। सुख उसको चाहिए, शरीर को नहीं चाहिए। शरीर को सुविधा चाहिए। शरीर का काम सुख से नहीं चलता, शरीर का काम सुविधा से चलता है। तो कितनी सुविधा चाहिए? जितनी आपको आवश्यक लगती है उतनी सुविधा चाहिए। कम चाहिए कि ज्यादा चाहिए, हर आदमी अपनी सुविधा डिसाइड कर सकता है। ये हर मानव अपनी सुविधा डिसाइड करेगा उसको कितना चाहिए। यहां से कोई खड़े होकर नहीं बताएगा कि आपको तो 2 ही कपड़े चाहिए, क्यों इतने भाग दौड़ कर रहे हो, 2 ही रोटी चाहिए। ऐसा नहीं है। किसी को 4 रोटी चाहिए तो क्या दिक्कत है, 4 खाए किसी को बदल बदल के रोटी चाहिए तो खा ले, क्या दिक्कत है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को एक ही कपड़े में 3 दिन रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को एक दिन में 3 कपड़े बदलना है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई कपड़े बदलने ना बदलने से कोई समस्या ही नहीं है। कितनी ज्वेलरी चाहिए, कितना पैसा चाहिए, कोई मतलब नहीं है। आपको जितना लगता है आप रखिए, लेकिन आपके पास विवेक हो तो आप उसको रख करके उसमें लिप्त नहीं है, मतलब उसमें सुखी होने के प्रयास में नहीं लग रहे हैं। सुविधा को तो सुविधा ही है। तो यहां सूचना मिली कि एक इकाई है शरीर जिसको सुविधा चाहिए, दूसरी इकाई है जीवन जिसको सुख चाहिए। हम अभी होश में नहीं थे तो हमको लगा शरीर को ही सब कुछ चाहिए, शरीर को ही सब कुछ चाहिए और शरीर को ही सब कुछ मिलने से सुखी हो जाएंगे हम। तो कोई बात नहीं, हमने मान लीजिए 20 साल, 25 साल, 15 साल, 28 साल, 40 साल, 50 साल इसमें बिता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। या एक शरीर यात्रा ही बिता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। किसी समय आपको कोई सही सूचना किसी समय ही तो मिलती है। तो मान लीजिए इस समय मिली कि जीवन नाम की कोई वास्तविकता है, जीवन नाम की कोई वास्तविकता है जो कि भारहीन है, जो कि असीमित चीज चाहिए, जिसको हर चीजें निरंतर चाहिए, जो समझ से मिलती है, जो खरीद, इसको जो भी चीजें चाहिए वो खरीद नहीं सकते, जिसको सुख चाहिए, शांति चाहिए, विश्राम चाहिए। और इस मामले में देखेंगे तो मैं हूं, मेरा बेटा है, मेरी पत्नी है, मेरे पति हैं, मेरी मौसी है, मेरी बुआ है, मेरे पिता हैं, मेरे बाबा हैं, मेरे दादी हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे गुरु हैं, सबको यही चाहिए। इस मामले में सब समान है। जीवन की आवश्यकता के मामले में सब समान है। शरीर की आवश्यकता के मामले में सब समान नहीं है, और शरीर की आवश्यकता के मामले में सबको समान होने की आवश्यकता भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है। सबके शरीर की डिजाइन अलग है, सबकी रुचि अलग है, उसमें थोपने जैसा कोई मामला ही नहीं है, थोपने जैसी कोई चीज ही नहीं है। सब अपने अपने अनुसार खाएंगे, अपने अपने अनुसार पहनेंगे, अपने अपने अनुसार गाड़ी घोड़ा रखेंगे, अपने अपने अनुसार मकान बनाएंगे। उसमें दिक्कत क्या है? केवल दिक्कत यह है कि अगर उससे वो सुखी होने का प्रयास किए तो वो रॉन्ग नंबर है। इतना ही सा केवल एक फाइन लाइन है। उससे सुखी नहीं होंगे, बस रखेंगे, रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो हम निरंतर सुख के जो प्यासे हैं उसमें निरंतरता हो नहीं सकती, क्योंकि सुविधाओं का
आकार भी सीमित है और मात्रा भी सीमित ही लगती है, तो जिस चीज का आकार सीमित है, मात्रा सीमित है, उससे कोई असीमित वस्तु मिलती नहीं है, उससे कोई निरंतर चीज मिलेगी नहीं। इतनी सी बात है, केवल इतनी सूचना पचनी चाहिए। नहीं तो कोई जाके बता देगा जी जीवन विद्या वाले कहते हैं कि सुविधा कम रखो। हाँ, दुष्प्रचार कर देते हैं लोग। जीवन विद्या वाले कहते हैं सुविधा कम रखो। यहां क्या कहा जा रहा है? सुविधा में सुख की निरंतरता नहीं है। सुविधा न रखने की बात नहीं की जा रही है, सुविधा तो चाहिए ही। अब मेरा गला खराब है फिर भी मैं 200 लोगों से बात कर पा रहा हूं क्योंकि सुविधा है मेरे पास। तो सुविधा तो चाहिए। आपके साथ कुछ लिख के बात कर पा रहे हैं क्योंकि ये सुविधा है, ये सुविधा है और ये सुविधा है। तो सुविधा तो चाहिए। बिना सुविधा के ना बातचीत हो पाएगी, ना जिंदा रहना हो पाएगा। तो सुविधा चाहिए। कितना चाहिए सब मानव अपना तय करेंगे, हर कोई अपना तय कर लेगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं है किसको कितना चाहिए। अब किसी का कम में काम चलता था, आप जबरदस्ती उनको ज्यादा दो। किसी का ज्यादा लगता है, आप बोलो नहीं ज्यादा हो रहा, आप फालतू इकट्ठा कर रहे हो। तो फालतू है कि नहीं है वो उस आदमी को तय करने दीजिए, मेरे पास क्या फालतू है। और जो आपको फालतू लगता है वो कबाड़ी के बुला के दे ही देते हैं। भाई हर मोहल्ले में गली में कबाड़ी घूमते हैं नहीं घूमते हैं? कबाड़ी मतलब जो पुरानी चीजें कबाड़ की चीजें लेते हो, तो आप उनको दे ही देते हैं। क्यों दे देते हैं? क्योंकि फालतू आपके पास है, इसलिए इसमें दिक्कत कोई नहीं है। तो जिस समय आपको जो फालतू लगेगा आप दे ही दोगे किसी को। तो इतनी बात पकड़ में आई कि जितना जितना हम सुविधा के क्षेत्र में आगे जाते गए, सुख के क्षेत्र में उतना आगे नहीं जा पाए। सुविधा के क्षेत्र में हमने लंबी छलांग लगाई है। हमारी कल्पना में जितना सुविधा आई थी उससे ज्यादा सुविधा हमने मानव जाति ने दे दिया है, लेकिन सुख के क्षेत्र में उतनी छलांग हम नहीं लगा पाए हैं। तो जीवन विद्या शिविर क्या कहता है? जीवन विद्या शिविर कहता है कि सुविधा और सुख में संतुलन करना पड़ेगा, संतुलन करना पड़ेगा। तो सुविधा बढ़ेगी कोई बात नहीं, लेकिन मानव सुखी होना चाहता है, निरंतर सुखी होना चाहता है, उस क्षेत्र में भी आगे बढ़ना पड़ेगा। तो श्रम भी करना पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा। तब अपनी हम दिनचर्या क्या डिजाइन करेंगे? श्रम भी करेंगे और समझेंगे भी। परिवार में बैठ करके 1 घंटा किसी भी टाइम, अरे भाई हम टीवी देखते हैं दिन रात। उस बच्चे से मैं पूछ रहा था, वो छोटा बच्चा भी मेरे पास आया था, आप टीवी देखते हो? बोला हाँ जी देखते हैं। क्या देखते हो? बोला जेठालाल देखते हैं। तो ठीक है 1-2 सीरियल देख लीजिए, लेकिन दिन भर कई लोग तो टीवी के सामने बैठ के केवल चैनल ही बदलते हैं, देखते कुछ नहीं है। क्यों भैया? मैंने देखा बहुत सारे लोगों को टीवी के सामने 2 घंटे बैठे रहते हैं, केवल चैनल बदलते हैं, देखते कुछ नहीं है। इसका मतलब उनके पास टाइम है, टाइम पास नहीं हो रहा, तो चैनल बदल बदल के टाइम पास कर रहे हैं, कुछ भी नहीं देखते। हमने देखा तो थोड़ा अच्छा सुखी होंगे नहीं उससे, क्योंकि उसमें भी झगड़ा लड़ाई दिखाता है। जैसे टीवी सीरियल आप देखिए, आपको हम जो इतना बातें बोल रहे हैं ना, ये टीवी भी बनाने वालों को पहले से पता है। जैसे अभी भी इस देश में कामकाजी महिलाएं कम हैं, मतलब जो बाहर निकल के नौकरी करने जाती हैं ऐसी महिलाएं कम हैं, संख्या कम है अभी। मतलब ये 50-50 नहीं हुआ है। 15% या 12% महिलाएं ही केवल घर से बाहर निकल के काम करने के लिए अभी भी जाती हैं, बाकी की महिलाएं घर में रहती हैं। और टीवी वालों को पता है कि उनके घर का जो काम है वो 11-11:30 बजे तक पूरा हो जाता है। नाश्ता पानी, कपड़ा सपड़ा, पोछा झाड़ू सब अगर अपने करती हैं तो अगर खुद करती हैं तो भी 11-11:30 बजे तक पूरा हो जाता है।
और 4 बजे तक वो खाली रहती हैं तो शाम को, क्योंकि तब तक बच्चे फिर आना शुरू हो जाते हैं स्कूल से। तो 11:30 से लेकर 4 बजे तक जितने भी टीवी सीरियल मिलेंगे वो सारे महिला प्रधान होते हैं। और उसमें जितना भी मकान कपड़े सब दिखाते हैं वो महिलाओं से जुड़े हुए दिखाते हैं। तो एक्चुअली सारे टीवी सीरियल भी एडवर्टाइजमेंट ही है। उसमें जो महिलाएं कपड़े पहनती हैं, उसमें जो घर का इंटीरियर दिखाता है, उसमें जो गाड़ियां दिखाती हैं, वो सारा, आप जानते हैं, देखिए 2 आदमी की जिद घर में मानी जाती है। किसकी? महिलाओं की और बच्चों की। बच्चे ने जिद कर दिया ये वाला सामान चाहिए, तो हमको लगता है यार कमा धमा तो बच्चों के ले रहे हैं, और बेचारा बच्चा ये मांग रहा है, हाँ 2 दिन से कह रहा है, क्यों ना ला दें। इसलिए टीवी के एडवर्टीजमेंट में ज्यादातर बच्चों को रखते हैं। तो बच्चा उसमें डिमांड करता है, उसके घर वाले लाते हैं, वो देख के हमारे घर का बच्चा डिमांड करता है और हम भी दौड़ के लाते हैं। तो क्या हो गया? हमको अपनी आवश्यकता का पता नहीं है, मुझे अपनी आवश्यकता का पता ही नहीं है। तो मेरी आवश्यकता कोई चैनल बताता है, कोई होर्डिंग बताता है, मतलब कहां हम फंसे हैं। तो मेरी आवश्यकता को मैं निर्धारित कर पाऊंगा तो मेरे में विश्वास आएगा। विश्वास मेरे में क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे अपनी आवश्यकता का पता नहीं है, मेरी नीड का पता मुझे नहीं है। तो अभी जो प्रिंसिपल वगैरह का शिविर हम लोग लेते हैं, तो उसमें एक बहन बोली कि भैया पिछले कुछ सालों में जो है 2000 के आसपास तक भारत में कॉस्मेटिक का मार्केट बहुत ही वीक था, कमजोर था। तो इसलिए बहुत सारी मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड ये भारत से चुना उन लोगों ने, और फिर उनसे कॉस्मेटिक का प्रचार कराया, तो भारत में कॉस्मेटिक का बाजार बूम कर गया। तो ये कंपनियों ने हमें बेवकूफ बनाया, ऐसा उन्होंने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं। तो मैंने क्या कहा कि दीदी उन्होंने बेवकूफ नहीं बनाया, हम बेवकूफ थे, हमको पहचाना। तो देखिए जब तक आप बेवकूफ रहेंगे तब तक आपको बेवकूफ कोई बनाने वाला नहीं है, आपको पहचानेगा ही वो। हमको बना थोड़ी रहा कोई बेवकूफ। आप विश्वास पूर्वक जी रहे हैं, कौन हिप्नोटाइज कर देगा आपको? संभावना ही नहीं है। जिनका विश्वास कमजोर रहता है उनको हिप्नोटाइज किया जा सकता है। जिनका विश्वास बढ़ा हुआ है, विश्वास पूर्वक जीते। अब मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, आप दिखाओ चमकाओ, जो चमकाना है दिखाना है। मतलब क्या करोगे आप? किससे प्रभावित? तो अयोग्यता से प्रभावित होते हैं। तो दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित होना मेरी अयोग्यता है, दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित होना मेरी अयोग्यता है, और दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित ना होना ये मेरी योग्यता है। मैं योग्य होना चाहता हूं, हुआ नहीं आज तक, क्योंकि शिक्षा में कंटेंट ही नहीं आया। बचपन से बताया गया, अरे पढ़ लो, क्यों पढ़ लो, देखो वो बच्चा, उनका बेटा पढ़ लिया, ये बन गया। अच्छा तो बन के क्या कर लिया? अरे पैसा कमा लिया। उससे क्या कर लिया? झगड़ा ही तो करता है माता पिता से, उसकी पत्नी से झगड़ा हो गया। मेरे परिवार में मेरी रिश्तेदारी में मैं देखा हूं, बचपन से जिन जिन रिश्तेदारों को बड़ा बताया गया और हमें मॉडल बताया गया, ये रिश्तेदार हैं, देखो यहाँ रहते हैं, ये कमाते हैं, इस पद पे हैं, बाद में उनके घरों की इस समय की दशा जब पिताजी वर्णन करते हैं तो मैं कहता हूं कि आप तो कहते थे वही मॉडल हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल सुविधाएं आने से, अन्य चीजों आने से ये हो गया। मतलब इसको मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूं, ब्लेम ये कर रहा हूं कि जब आपके पास सब कुछ सुविधा आ गया, सब कुछ आ गया, समझ नहीं है, तो आपके पास कार्यक्रम ही झगड़ा बचता है और कुछ बचता नहीं है, लड़ाई झगड़ा ही बचता है। वही चलेगा फिर, तुम मुझे समझ नहीं सकते और तुम मुझे समझ नहीं सकती, यही चलेगा कि तुम मुझे समझ नहीं सकते, तुम मुझे समझ नहीं सकती, और मुझे तो फ्रीडम चाहिए, मुझे तो फ्रीडम चाहिए, मुझे तो स्वतंत्रता चाहिए।
अभी स्वतंत्रता किसको बोलते हैं? मनमानी को स्वतंत्रता बोलते हैं। और मनमानी क्या है? मन को देखिए तो मन में जो मान लिया है वही मनमानी है। चित्रण में बैठा हुआ है यानी मान लिया है, मान लिया है और वैसा आस्वादन हो रहा है। अब आप देखिए, उंगली रख के बात कर सकते हैं। मनमानी, मनमानी मतलब क्या? आपने मान लिया है, जाना नहीं है और उसी का आस्वादन हो रहा है, वही मनमानी है। तो मनमानी को स्वतंत्रता बोल दिया जी। फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम के चक्कर में झगड़े हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। परिवारों की दशा क्या है? परिवारों की दशा क्या होती है? तो परिवार होता है, परिवार का मतलब 3 पीढ़ी जहां साथ में रहती है। अब इसकी चर्चा आ गई, थोड़ी कर देते हैं, फिर इसको कनेक्ट करेंगे इससे। क्या होता है वो अभी परिभाषा में बाद में जाएंगे। परिवार का मतलब एक महिला एक पुरुष है, एक विवाह संबंध हुआ और ये दोनों लोग साथ साथ हैं, इनके 2 बच्चे हैं। अभी हम 2 बच्चे वाला मॉडल लेके चलेंगे। दोनों बच्चे लड़के भी हो सकते हैं, दोनों लड़कियां भी हो सकती हैं, एक लड़का एक लड़की भी हो सकता है। हाँ, मतलब मेरे पे कोई ब्लेम मत करिएगा, एक लड़का एक लड़की या लड़के वाली बात कर रहे हैं। अब फिर इन दोनों बच्चों की शादी होगी। किसकी शादी होगी? दोनों बच्चों की शादी होगी, क्योंकि आज तक जिनकी शादी होती है वो बच्चे ही रहते हैं और बच्चों की शादी हम कर देते हैं। शरीर केवल बड़ा हो गया है केवल शरीर बड़ा हो गया है बच्चे, तो 2 बच्चों की शादी कर देते हैं। फिर क्या होता है? इनके भी बच्चे हो जाते हैं। 2 वाला ही मॉडल। अब किसी परिवार में ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन और ये थर्ड जनरेशन, ये 3 जनरेशन साथ में रहती है तो उसको फैमिली बोलते हैं, परिवार बोलते हैं। मतलब जो परिभाषा है, जो भी समाज शास्त्र वगैरह में पढ़ाई जाती है। अभी क्या हो गया? अब इस परिवार में क्या फायदा होता है? इनके पास एक जिंदगी का लंबा जीने का एक एक्सपीरियंस है। 50 साल, 60 साल, 70 साल इनमें इन्होंने बिताया है, इन्होंने संबंध देखा है, दुनिया देखी है। यानी इनके पास कुछ उत्तर हैं, भले ही रटे रटाए हों, समझ वाले ना हो, लेकिन कुछ उत्तर है। और इनके पास प्रश्न है, जिज्ञासा है। बच्चा जिज्ञासु होता है, तो ये इससे कनेक्ट हो गए, क्योंकि इनके पास भी टाइम है, इनके पास भी टाइम है। इनका भी टाइम नहीं बीतता, इनका भी टाइम नहीं बीतता। इनके पास उत्तर है, इनके पास प्रश्न है, दोनों कनेक्ट हो गए, पूरक हो गए। ये बीच वालों के पास टाइम नहीं है, ये श्रम कर रहे हैं क्योंकि श्रम पूर्वक सुविधा भी घर में आनी है, दाल रोटी चलना है, तो ये श्रम में लगे हुए हैं। ये कनेक्ट हो गए, एक दूसरे के पूरक हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ? हमने इनको टेंशन मान लिया, ऊपर वालों को ये ऊपर वाले क्या हैं? टेंशन है। हाँ, बोलते रहते हैं दिन भर, टोका टोकी करते रहते हैं, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, मेरे जमाने में तो ऐसा नहीं होता था, तुम क्यों ऐसा कर रहे हो। तो इनको क्या कर दिया? काट दिया, मतलब इनको दूर कर दिया या दूर आ गए। कई मॉडल चलते हैं इसमें इनको दूर करने के कई मॉडल हैं, मार्केट में आए हुए हैं। एक तो मॉडल ये है कि ये पीढ़ी कहीं दूर चली जाती है कमाने। आप कहाँ आओगे, मम्मी पापा, आपका तो समाज वहां है, आपको यहाँ अच्छा ही नहीं लगेगा, हाँ कभी घूमने फिरने आ जाना एक मॉडल ये चलता है। दूसरा मॉडल क्या चलता है? इनको वृद्धाश्रम में डाल दो। ये थोड़ा सा क्रूर मॉडल है, लेकिन ये भी चल रहा है, सफल है देखिए मैं मार्केटिंग कर रहा हूं इसकी। तो ये दूर हो गए। अब क्या हुआ? अब ये फैमिली बची। इस फैमिली को आजकल नाम दिया गया न्यूक्लियर फैमिली। क्या नाम दिया गया? पति पत्नी और बच्चे ये हो गया न्यूक्लियर फैमिली। अब ये न्यूक्लियर फैमिली में क्या समस्या आती है? अब इनको दूर कर दिया तो इनकी जिज्ञासा थोड़ी खत्म हो गई है।
इनके पास तो जिज्ञासा है। ये कहाँ जाएंगे जिज्ञासा लेके? यहाँ आएंगे। इनके पास टाइम है? अरे हट जा, स्कूल में नहीं पढ़ाया गया क्या? जा नेट में देख ले, गूगल करके देख ले। और जब वो गूगल में लग जाता है तो बोलते हैं तू दिन भर मोबाइल में लगा रहता है। गूगल की आदत हमने डराई और बाद में बोलते हैं मेरा बेटा है दिन भर मोबाइल में लगा रहता है। आदत आपने डलाई। फिर क्या करते हैं, इसके प्रश्न अगर लगे ही रहते हैं तो क्या करते हैं, इनका कहीं ट्यूशन करा देते हैं। उस दिन जो चर्चा किए थे, जाओ ट्यूशन में, 2 घंटा ट्यूशन में जाएगा, हम शांति से रहेंगे। फिर जिसके यहाँ ट्यूशन गया है वो भी परिवार ऐसा ही है। वो क्या करता है, वो दूसरे जगह अपने बच्चे को ट्यूशन लगाता है। तो अभी सारे ट्यूशन लगाने में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि इनको जिज्ञासा है और इनके पास समाधान नहीं है, समय नहीं है। तो ये हो गया न्यूक्लियर फैमिली। इसकी एक समस्या ये है, इनके लिए बच्चे ही समस्या है। अभी क्या हो गया, एक नया लेटेस्ट मॉडल आया है परिवार का। अब ये इसमें भी ब्रेक हो गया है। पति महोदय की नौकरी दिल्ली में, पत्नी की नौकरी बेंगलोर में या यूएस में। कमाना पड़ता है, मान लीजिए बच्चों को सुविधा देना है, आप जानते नहीं हैं कितना कमाना पड़ता है। एक की कमाई से थोड़ी होगा, दोनों कमाएंगे तब चलेगा। और बच्चा कितना, एक ही है। दिल्ली में एक ही बच्चा, अब दिल्ली में एक बच्चे का मॉडल चलता है, मैक्सिमम लोगों के एक बच्चे हैं। बोलते हैं जी दोनों कमा के एक बच्चे को नहीं पाल सकते। तो हमने कहा चुल्लू भर पानी ढूंढ लीजिए फिर। हाँ, मतलब 2 कमा रहे हैं, एक बच्चे को नहीं पाल सकते। तो इसको बोलते हैं अल्ट्रा न्यूक्लियर फैमिली। ये मॉडल लेटेस्ट है, अभी मार्केट में आया है, अल्ट्रा न्यूक्लियर फैमिली। पति दूर पत्नी दूर, बोलते हैं जी दूर रहने दो, नजदीक रहने से झगड़ा ज्यादा होता है दूर रहने। तो इसको सोम भाई एक नाम दिए, निकट दोस्त। तो निकट दोस्त को दूर करने के लिए भी अल्ट्रा न्यूक्लियर फैमिली ठीक है। दूर दूर रहेंगे, कम झगड़े होंगे। लेकिन फोन महोदय तो उस पर भी झगड़ा ही करवा रहे। व्हाट्सएप पे धड़ाधड़, तुम नहीं समझ सकते, हम नहीं समझ सकते, आती हूं तो बताती हूं, मैं आता हूं तो बताता हूं। व्हाट्सएप पे चल रहा धड़ाधड़, बोल नहीं सकते। तो क्या हो गया, परिवार समझ में नहीं आया, संबंध समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया? संबंध क्यों नहीं समझ में आया? क्योंकि मानव नहीं समझ में आया। मानव नहीं समझ में आया, इसका मतलब क्या है, जीवन नहीं समझ में आया। क्योंकि मानव को ड्राइव तो, मानव शरीर को ड्राइव तो जीवन ही करता है। तो जीवन नहीं समझ में आया, तो जीवन नहीं समझ में आएगा तो मानव समझ में नहीं आएगा, मानव समझ में नहीं आएगा तो संबंध कहां से समझ में आएगा? क्योंकि संबंध जीवन और जीवन के बीच में होता है, शरीर और शरीर के बीच में नहीं होता है। वैसे भी संबंध 2 प्रकार के होते हैं। संबंध 2 प्रकार के होते हैं, पारिवारिक और वैचारिक। ये 2 प्रकार के संबंध होते हैं। पारिवारिक संबंध क्या है? इसको हम लोग एक और नाम देते हैं बोलचाल की भाषा में, खूनी संबंध और नाखूनी संबंध। वो नाखून वाला नाखूनी नहीं, मतलब जो ब्लड रिलेशन और ब्लड रिलेशन नहीं है। तो वैचारिक संबंध किस आधार पे होते हैं? इसका नाम ही वैचारिक है। इसका मतलब मेरा और आपका विचार मिल गया तो हम दोनों साथ बैठने लगे, बात करने लगे, मित्र बन गए। इसको बोलते हैं वैचारिक संबंध। और पारिवारिक संबंध क्या है? जो ब्लड रिलेशन का है, ब्लड रिलेशन है, जैसे वहां लिखा हुआ है। ये इसको पारिवारिक संबंध बोलते हैं। इसमें विचार का मिलना कोई जरूरी है? नहीं है। तो विचार नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए पारिवारिक संबंध में कलेश है। तो होना क्या है, पारिवारिक संबंध भी वैचारिक संबंध हो जाएं। आपका ध्यान जा रहा है? पारिवारिक संबंध, आज मेरा गला खुल गया पूरा। आप लोगों की महिमा देखिए।
तो पारिवारिक संबंध भी वैचारिक संबंध हो जाएं। सारे घरों में जो कलेश है वो सुविधा का है या विचारों का है? अधिकतर मैक्सिमम किस चीज का है? विचारों का है। विचारों में मेल नहीं है। तो हमने कभी भी पारिवारिक संबंध को वैचारिक संबंध माना ही नहीं। विचार मिले ये जरूरी ही नहीं माना। बोल भी दिया जी विचार अलग अलग हो सकते हैं। तो जब तक सुविधा के अर्थ में है, रुचि के अर्थ में है, अपनी अपनी मान्यताओं के साथ है, तब तक विचार मिल नहीं सकते। लेकिन सही विचार मिलते हैं। मेरे पास कोई गलत विचार है, आपके पास कोई गलत विचार है, दोनों मिल ही नहीं सकते। लेकिन मैं किसी सही विचार के साथ हूं, आप किसी सही विचार के साथ हैं, वो मिलता ही है। तो सही विचार क्या है हमको आज तक पता ही नहीं चला। इसलिए हमारे पारिवारिक संबंध वैचारिक संबंध नहीं हो पाए। इसी बात के सारे झगड़े हैं। इसी बात से पूरी कोर्ट कचहरी भरी हुई है। कोर्ट कचहरी में अधिकतर मुकदमे किसके हैं? पारिवारिक झगड़ों के हैं। कोई संपत्ति का विवाद है या विचारों का विवाद है? मेरा और मेरे भाई का बढ़िया विचार है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा ज्यादा कमाता हूं, मेरा भाई थोड़ा कम कमाता है, तो मैं उसको ज्यादा प्रॉपर्टी दे देता हूं, ले जा भाई, क्या दिक्कत है? लेकिन विचार नहीं मिलते तो मैं बोलता हूं नहीं जी इसमें तो बराबर बराबर ही चाहिए। तो बंटवारा, अभी न्याय की बात आएगी, तो बंटवारा का क्या सिस्टम है क्या नहीं है वो सारी बातें होती हैं। तो पारिवारिक संबंध को हमने कभी भी वैचारिक संबंध नहीं माना, इसलिए परिवार में कलेश हमेशा बना हुआ है। तो अब हम देखेंगे सही विचार क्या है। सही विचार क्या है? यहां विचार लिखा है तुलन और विश्लेषण। तो विश्लेषण ही विचार है। मेरे अंदर जो विश्लेषण चलता है, तर्क चलते हैं, वही विचार है। अभी तर्क का आधार क्या है? सभी तर्क का आधार तुलन होता है, सभी विश्लेषण का आधार तुलन होता है। इस तुलन में अभी हमारा प्रिय हित लाभ ही दृष्टि है। सारी दृष्टि प्रिय हित लाभ की है। तो प्रिय की दृष्टि से विश्लेषण, हित की दृष्टि से विश्लेषण, लाभ की दृष्टि से विश्लेषण, इसमें कहां मेल होगा, कहां विचार होगा, मिलेगा। तो कल जब जीवन क्रिया शुरू किए थे तो मुझे पता है कि आप जीवन क्रिया से जुड़ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो जीवन शब्द पहली बार आया मेरे सामने, फिर बोले अच्छा फिर जीवन शब्द जब आता है तो भी हमारा पहले का कुछ मैच करता है, कुछ हमने सुना है भाई शरीर को चलाने वाली कोई चीज है। लेकिन जब बोलते ये क्रिया है, मेरे में होती है, मैं उसको देख सकता हूं, मैं उसको पहचान सकता हूं, तो आज तक हम देखे ही नहीं है। तो हम बोलते हैं जी आस्वादन होता है, चयन होता है, तुलन होता है, विश्लेषण होता है और आपको बढ़िया नींद आने लगती है। क्यों? ऐसा कभी हमारे में हुआ ही नहीं, मैंने ऐसा कभी पहचाना ही नहीं। अपने आप को इस रूप में मैंने कभी देखा ही नहीं कि मेरे में चित्रण होता है, मेरे में तुलन होता है, मेरे में विश्लेषण होता है, मेरे में आस्वादन होता है। कोई भी चयन, सिलेक्शन बिना आस्वादन के मैं नहीं करता। आज तक जितने भी निर्णय हमने लिए हैं उसका पहले स्वाद मेरे में आ जाता है तो मैं निर्णय लेता हूं। जिसका स्वाद मेरे में नहीं आता उसका निर्णय मैं नहीं लेता। तो स्वाद किस किस चीज का आता है? शब्द का, स्पर्श का, रूप का, रस का, गंध का। नहीं तो स्वाद बार बार बोलेंगे तो आपको रस ही आएगा, रस वाला, जीभ वाला स्वाद। तो रूप का भी स्वाद होता है। आप जैसे मान लीजिए छुट्टियों में शिमला जाने का प्लान बना रहे हैं, तो शिमला क्या है? अरे शिमला में जाके अच्छा खाना थोड़ी मिलने वाला है, उससे अच्छा तो आप घर में खा रहे होते हैं। तो क्या चीज का चित्रण होता है? रूप का। और किसी ने बताया हुआ है कि शिमला बहुत ही खूबसूरत जगह है और गर्मियों में वहां ठंडा रहता है, ऐसा बताया हुआ है। तो ठंडापन का चित्रण
कहाँ हो रहा है? त्वचा का है। खूबसूरत है शिमला, ये रूप का चित्रण हो रहा है। तो जब जब रूप का और जब जब स्पर्श का चित्रण हो रहा है तो उसका स्वाद भी आप में आ रहा है। भाई खूबसूरत और बदसूरत, ये दो शब्द हमने, सूरत तो सूरत होती है, खूब और बद कौन बनाया है, कौन लगाया? हमने लगाया है। जो मुझे अच्छा लगेगा वो खूबसूरत है, जो मुझे अच्छा नहीं लगेगा वो बदसूरत है। तो इसमें कभी मेल नहीं हो सकता है आपके लिए जो खूबसूरत हो मेरे लिए ना हो, मेरे लिए जो खूबसूरत हो मेरे लिए जो बदसूरत हो आपके लिए खूबसूरत हो सकता है, मतलब हो ही सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि हम थोपे नहीं जी, आप भी उसको बदसूरत मानिए। जैसे जो कंपनी अपने देश में गोरे होने का क्रीम बेचती है, वही कंपनी ठंडे देशों में सांवले होने का क्रीम बेचती है। टैनिंग बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? आप लोगों ने सुना है शब्द? वहां टैनिंग करते हैं, मतलब वो क्रीम लगा के धूप में बैठे रहते हैं जिससे कि शरीर थोड़ा सांवला हो जाए। तब आप बताइए गोरा अच्छा कि सांवला अच्छा? मतलब अच्छा बोलेंगे, सुंदर बोलेंगे तो गोरा सुंदर कि सांवला सुंदर नहीं तय कर सकते। अब वहां के अनुसार सांवला सुंदर है, हमारे यहां के अनुसार गोरा सुंदर है। तो अपनी मान्यता के अनुसार मेरे में स्वाद आता है, आस्वादन होता है। जैसा मैंने मान रखा है, जिसको सुंदर मान रखा है, उसके अनुसार मेरे में आस्वादन होता है। तो हमने सुंदर में भी सुंदर ढूंढना शुरू कर दिया। जैसे कल चर्चा हो रही थी कि धरती की सबसे अनुपम, सबसे खूबसूरत कृति क्या है? ह्यूमन बॉडी, उसके बाद उसमें का ब्रेन। तो मानव शरीर ये धरती की सबसे अनुपम कृति है, क्योंकि इसमें कल्पनाशीलता है और कर्म स्वतंत्रता है, और ये परफेक्ट डिजाइन है अस्तित्व की। तो हम बोल रहे हैं सबसे सुंदर कृति मानव है। अब हम सुंदर में भी सुंदर ढूंढने लग गए। सुंदर में सुंदर ढूंढने लग गए। तो कोई अपने को सुंदर नहीं पाता है तो उसी में डिप्रेशन में चला जाता है। क्यों? क्योंकि हमने सुंदर का भी एक कोई लाइन खींच दिया, यहां कोई और लाइन खींच दिया, दूसरे जगह कोई और लाइन खींच दिया। तो क्या है ये मान्यता है, ये मेरे में चित्रण है। तो मेरे में जैसा चित्रण होता है वैसा ही मेरे में आस्वादन होता है, मेरे में स्वाद आता है। तो मुझे जो रुचि, मेरे रुचि का है, यानी मेरे इंद्रियों को अच्छा लगता है, उसको रुचि मूलक स्वाद बोलते हैं। कभी कभी मैं संबंध में कोई स्वाद लेता हूं, विश्वास का, सम्मान का, कृतज्ञता का, प्रेम का, गौरव का, ये संबंध के स्वाद हैं। संबंध में सम्मान न मिले तो आपको संबंध का स्वाद नहीं आएगा। सम्मान न मिले मतलब संबंध हो और उसमें सम्मान न पहचान में आएगा अपने ही अंदर। तो सम्मानित संबंध ना हो तो आपको क्या स्वाद आएगा? विश्वसनीय संबंध ना हो, यानी संबंध में विश्वास ना हो तो संबंध का स्वाद नहीं आता। आप भय में रहते हैं। जैसे ट्रेन के अंदर आप जाते हैं और आपकी सीट है, उस पर बैठते हैं, लेटते हैं, सामान को सीट के नीचे डालते हैं और एक जंजीर लगा के ताला भी बंद करते हैं। और सामने वाली सीट पे भी कौन बैठा है? मानव ही बैठा है, लेकिन उसको हम संशय की दृष्टि से, शंका की दृष्टि से देखते रहते हैं। सूटकेस अंदर डालते हैं, चैन लगाते हैं, ताला बंद करते हैं, और जब रात में नींद खुलती तब देखते हैं नीचे है कि गया। ये क्या चीज है? वहां जो भी संबंध आपको दिख रहा है वो विश्वसनीय नहीं है, विश्वास नहीं है। इसका मतलब संबंध मूलक कोई आस्वादन वहां हो ही नहीं रहा आपको, क्योंकि संबंध मूलक आस्वादन का मतलब ही है विश्वास का होता है, सम्मान का होता है, सुरक्षा का होता है, स्नेह का होता है, कृतज्ञता का होता है, गौरव का होता है, श्रद्धा का होता है, प्रेम का होता है। ये संबंध मूलक आस्वादन है। संबंध में जलेबी और समोसे का आस्वादन नहीं होता, वो तो आपको रुचि मूलक होता है।
आपको जलेबी अच्छी नहीं लगती, हमें अच्छी लगती है, हम कहेंगे जी खाइए बहुत अच्छी लगती है, आप बोलेंगे मुझे अच्छी नहीं लगती, अरे आपको नहीं अच्छी लगती, बहुत अच्छी चीज होती है खाइए, तो क्या होगा, वो संबंध ही फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो रुचि के मामले में तो रुचि मूलक आस्वादन होता है, तो अभी रुचि के आधार पे हम समानता देखने की कोशिश करते हैं, उसमें मिलता नहीं है। संबंध के आधार पे समानता देखेंगे तो विश्वास सम्मान की ही देखेंगे। जी भैया, इसमें थोड़ा देर में आता है जब आप ऑन कर। हेलो, हाँ, हम लोग जब समझौते की बात करते हैं तो समझौते में आस्वादन किस चीज़ का होता है? जैसे अभी आपने कहा कि जलेबी का ही एग्जांपल लिया, तो अब मुझे पसंद नहीं है लेकिन फिर भी वो बोल रहे हैं तो ज़बरदस्ती मेरे को खाना पड़ रहा है। समझो कि जैसे जब नहीं खाया, एक तो ये ऑप्शन है, दूसरा कि घर पे कोई ऐसी सब्जी बनी है कि जो पसंद नहीं है और मतलब बार बार कभी मतलब सामान्यतः ऐसा होता भी है कि मूड खराब करके फिर वो खाना पड़ रहा है इसलिए खा रहे हैं, तो उसके केस में हम लोग रुचि तो है नहीं, संबंध भी समझौता है ही नहीं। है। हाँ, वो समझौता ही है, तो उसको आस्वादन में कहाँ रखेंगे फिर वो? रुचि मूलक आस्वादन ही है, उसमें आपने संबंध को प्रधानता दिया है। इतना तो है कि भाई घर में बना है तो खा लो, लेकिन आपको स्वीकार नहीं हो रहा क्योंकि आपकी रुचि का नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब आप संबंध के निर्वाह की कोशिश तो कर रहे हो, लेकिन जिसने बनाया है, जिस जो कह रहा है खाने के लिए, उसको समझ ही नहीं है कि आपको सब पसंद नहीं है, क्यों जबरदस्ती खिला रहा है। तो दोनों तरफ से नहीं हो रहा, न्याय नहीं हो रहा है, इसलिए समझौता ही है। उसको ऐसा बोल सकते हैं कि मतलब शरीर को भूख लगी है तो खाना तो है ही, तो वो लक्ष्य के साथ खा रहे हैं कुछ भी करके। बस ठीक है, तो होता इतना ही है, बहुत अच्छी बात है ये, होता इतना ही है कि जब हमें लक्ष्य मूलक आस्वादन होने लगता है तो रुचि नियंत्रित हो जाती है, जिसको आप बोल रहे हैं ना, नियंत्रित हो जाती है। अगर आप पीड़ा में आ रहे हैं उसको खा के, इसका मतलब समझौता कर रहे हैं, लेकिन आप खा रहे हैं, भैया देखो भोजन क्या है, तो एक्चुअली अभी हमने भोजन को रुचि में लाके समाहित कर दिया। भोजन किस लिए है? तो शरीर को जिंदा बनाए रखने के लिए है। तो जब लक्ष्य मूल, और शरीर जिंदा क्यों रहना चाहिए? हाँ, जीने की आशा है, लेकिन कैसा? सुखपूर्वक। शरीर के माध्यम से ही समाधान की आशा है, शरीर के माध्यम से ही समझ को पूरी करने की आशा है, इसलिए शरीर को जिंदा बनाए रखना है, इसलिए खाना है। ये जब पता चल जाता है तो हमारे लिए बड़ी चीज नहीं रह जाती। फिर जब लक्ष्य के अर्थ में जीते हैं तो रुचियां नियंत्रित स्वतः हो जाती हैं। मैं जो कह रहा हूं कि अभी रुचियों के आधार पर समानता देखने का प्रयास करेंगे तो दिक्कत होगा, लेकिन जब लक्ष्य के अर्थ में जीना शुरू करेंगे तो रुचियां बहुत मायने नहीं रह जाती। इंद्रिय रुचियों का मतलब क्या है? रुचियों का मतलब है प्रिय, तुलन प्रिय का हो रहा है। जब प्रिय का तुलन होता है तो रुचियां हावी होती हैं, तो मैं रुचि मूलक आस्वादन को ही प्राथमिकता देता हूं। लेकिन जब लक्ष्य मूलक आस्वादन हो जाता है, हमें मानव लक्ष्य पकड़ में आ जाता है कि मैं मानव हूं, मैं मानव हूं। मानव का मतलब क्या हूं? शरीर हूं और जीवन हूं, शरीर और जीवन के सह अस्तित्व में हूं, शरीर और जीवन का संयुक्त साकार रूप हूं। जीवन नाम की एक इकाई है जो समाधान चाहती है, जो सुख चाहती है। उस सुख को पाने के लिए शरीर एक साधन है, शरीर साधन है, तो शरीर को जिंदा बनाए रखना है, जिंदा बनाए रखने के लिए आहार है। तो अब क्या होता है? मेरी रुचि उसमें नियंत्रित हो जाती है, फिर स्वनियंत्रण हो जाता है। अब अगर आपको रुचि मूलक अभी भी प्राथमिकता ही है, इसका मतलब लक्ष्य समझ में नहीं आया है। रुचि मूलक अगर प्राथमिकता में ही है तो लक्ष्य समझ में नहीं आया है, यानी प्रिय का ही तुलन हो रहा है, तो फिर आप उसको समझौता ही मान रहे हो, यानी समझौता जैसा ही है वो। तो कुल मिला के जब तक यह आस्वादन लक्ष्य मूलक नहीं होता, यह लक्ष्य मूलक कब होता है? लक्ष्य मूलक कब होता है? जब मेरी तुलन की दृष्टि बदलती है। क्या दृष्टि बदलती है? तो मेरी तुलन न्याय दृष्टि की हो जाती है, मेरी तुलन की दृष्टि में न्याय प्रधान हो जाती है। न्याय क्या है? न्याय क्या है?
जब तक दृष्टि में न्याय नहीं होगा, हाँ भैया पानी पानी, जब तक न लक्ष्य समझ में आता है। दोनों पक्ष को एक्सेप्टेंस रहे। और कोई इसको और खोलिए, क्योंकि यही मेन मुद्दा। हेलो। समाधान ही न्याय है। समाधान ही न्याय है। समाधान ही न्याय है। बढ़िया। और જે બે પક્ષ હોય ને એ બે પક્ષ ઝઘડતા હોય અને એમનું નિરાકરણ કોઈ લાવી શકે એને ન્યાય કહેવાય. हाँ, आधा मैं समझा, आधा आप बताइए। अच्छा, दो पक्ष आपस में लड़ते हैं तो उसमें अगर कोई निराकरण आ गया तो न्याय है। बहुत बढ़िया। और व्यवस्था के रूप में जो सही है उसे न्याय कहेंगे। व्यवस्था में जो, व्यवस्था के रूप में जो सही है वो न्याय है। जी। કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય એમાં જે પક્ષકારો હોય એ બંનેને કોઈ પણ એ પ્રશ્નમાં સમાધાન મળી જાય અને બંનેને સંતોષ થાય એને ન્યાય કહેવાય. संतोष ही न्याय है। સંતોષી ન્યાય. बढ़िया। और हेलो। हाँ जी, कहाँ पर? व्यवस्था में रहकर जो दोनों पक्षों को स्वीकार हो। हाँ, व्यवस्था में रहकर हाँ, दोनों पक्षों को स्वीकार हो। ठीक है। नियति, नियति यही है। हाँ, जिसका रिजल्ट सुख पूर्वक आए वो ही न्याय है। अच्छा, जिसका रिजल्ट सुख आए। हाँ। तो इससे सुख तो पकड़ में आ रहा, न्याय पकड़ में नहीं आ रहा। न्याय कोई वस्तु है कि नहीं है? सुखी रिजल्ट आएगा तभी न्याय हो पाएगा ना। सुख मतलब क्या? निरंतर वाला? नहीं तो सुख तो रिजल्ट ऐसे भी आता है कि मैं शराब पीता हूं, दूसरा भी शराब पीता, दोनों मिल गए और पी के खूब खुश हो गए। न्याय हुआ कि नहीं हुआ? हेलो। एक्चुअली रिजल्ट के आधार पे थोड़ा सा पहचानना मुश्किल होता है। वस्तु क्या है? हाँ जी, कहां पर? कहां पर? अच्छा, अभी कोई? हाँ जी। समानता। समानता ही न्याय है। हाँ, दोनों को ध्यान में रखकर किसी को ज़्यादा नहीं, किसी को कम नहीं, दोनों को संतोष हो और समानता इसमें आए, वही न्याय है। बढ़िया। हेलो। हाँ जी। दोनों पक्षों को एक व्यक्ति सुन रहा है और ये व्यक्ति दोनों पक्षों को सुनकर सही बात को, सच या झूठ जो भी हो, वो किसी का भी पक्ष लिए बिना सही बात को रखे उसे न्याय बोलते हैं। अच्छा, तो दोनों को स्वीकृत हुआ ये? कोई जरूरी नहीं दोनों को स्वीकृत होगा। दोनों विचारों को संतुलन कराना वही न्याय है। हाँ जी, कहां पर? हाँ, कौन? नहीं, अभी कोई बोला है ना पहले। हेलो जी। संबंध की पहचान उभय तृप्ति। हाँ, इससे वस्तु पकड़ में आई। चलिए, बढ़िया। और उभय तृप्ति न्याय है, लेकिन इसमें वस्तु मतलब कैसे पकड़ में आएगी? हाँ जी। हेलो। दोनों की शंका का समाधान। कोई एग्जाम्पल लीजिए। एग्जाम्पल यानी कि हम किसी भी चीज को अलग अलग तरीके से सोचते हैं और आपने उस चीज को सही तरीके से समझाया और दोनों समझ गए, यानी कि दोनों की
शंका का समाधान हो गया तो सही नहीं हुआ। हाँ ठीक है। और हाँ जी, समाधान और स्वीकार जहाँ मेल खाते हैं उसे न्याय कहेंगे। समाधान और स्वीकार, स्वीकार। हाँ, अच्छा, दोनों का मिक्स उसको न्याय कहेंगे। तो स्वीकृति ही समाधान है, एक्चुअली स्वीकारना ही समाधान है। और व्यवस्था के अर्थ में समाधान। कहाँ भैया? हाँ, व्यवस्था के अर्थ में समाधान को न्याय बोलते हैं। बढ़िया, बहुत अच्छी सभा है ये, मतलब बहुत जल्दी वस्तु तक पहुंच जाते हैं, नहीं तो दिल्ली में न्याय निकालने में दिन निकल जाता है। सर, न्याय जो होता है वो तो दोनों पक्षों को ध्यान में रखकर किया जाता है, लेकिन किसी एक को उसका बेनिफिट मिलता है और किसी एक को उसका नुकसान मिलता है, यही न्याय है ना सर। अगर आप हाई कोर्ट में जाएंगे, किसी भी कोर्ट में आप जाएंगे तो आपको जो उसकी केस दाखिल करने वाला व्यक्ति है और उसके सामने वाला व्यक्ति है, वो दोनों पक्ष में तो एक कैसे हो सकेगा सर न्याय में? तो न्याय हुआ कि नहीं हुआ? अगर दोनों पक्ष खुश है ही नहीं है, मतलब एक ही पक्ष खुश है, एक दुखी हो गया, तो न्याय हुआ कि नहीं हुआ? न्याय तो होगा ही सर। एक के लिए न्याय हुआ, दूसरे के लिए अन्याय हो गया। हाँ जी, कोई बात नहीं, अभी सेट होगा धीरे धीरे। हेलो। हाँ जी, वो भाई ने बोला कि एक को दुख होगा, एक को सुख होगा, लेकिन हम सोचेंगे व्यवस्था में, तो व्यवस्था क्या है, सही क्या है? जो गलत होगा उसको तो दुखी होगा ना, वो तो सही न्याय है ना। तो व्यवस्था ये कहती है, जिसकी गलती है उसको सजा मिलनी चाहिए। हाँ, जो सही है उसको तो व्यवस्था को जो हम मानव में व्यवस्था को जो हम समझ रहे हैं कल से, उसमें हमने ही स्वीकारा है हर मानव सुखी होना चाहता है, उसमें तो एक दुखी हो गया। तो उसकी मान्यता गलत थी ना, जो जिसकी गलती थी उसकी मान्यता गलत थी, व्यवस्था में वो गलत था कि मुझे भी सुख मिले, लेकिन व्यवस्था सही है तो उसको तो मेरी मान्यता गलत थी, ये पता लग जाएगा तो मैं खुशी होऊंगा कि दुखी होऊंगा? सुखी होएगा वो। उसको कहाँ सुखी हुआ? उसकी मान्यता उसने मानी नहीं, उसने जो मान्यता समझ गई कि मेरी मान्यता गलत थी, तो उसको अंदर तो सुखी मिलेगा कि मैं ही गलत था कहीं पर, तो उसको दुख होने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब दोनों सुखी हो गए। हाँ। अच्छा, बढ़िया। हाँ जी, और अच्छा, न्याय जो है वो सुविधा के क्षेत्र की चीज है या भाव के क्षेत्र की चीज है? जैसे बराबर बंटवारा हो गया, ठीक है, कोई फैसला हो गया, ये सब क्या चीज है? ये सुविधा के क्षेत्र में हम जा रहे हैं, जबकि न्याय क्या है? आप क्या बोल रहे हैं? भाव के क्षेत्र की है। और कोई बोल रहे थे? विक्रम भाई। हाँ जी, दोनों पक्षों का परिणाम ऐसा आए कि संबंध खराब ना हो, वो न्याय है। संबंध खराब ना हो मतलब ये थोड़ा सा नेगेटिव वाली परिभाषा हो गई। अच्छा। संबंध बना रहे, संबंध स्वीकृत रहे, ये पॉजिटिव परिभाषा है। और तो एक चीज की तरफ तो हम जा रहे हैं धीरे धीरे करके। हाँ जी, इधर माइक दीजिए। एक चीज के करीब शायद हम जा रहे हैं कि न्याय को हम संभवतः संबंध के बीच में लेकर के आ रहे हैं, इतना तो अभी कर रहे हैं। हाँ जी, ऑन ही होगा वो। हेलो। हाँ। परिवार के संबंध में न्याय मतलब सामने वाली की खुशी के लिए समझ से थोड़ी बहुत समझौती कर ली, वो मेरे लिए न्याय। सामने वाले की खुशी के लिए आप खुश हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं उससे? हम भी खुश हो रहे हैं। परिवार में है, अगर कुछ भी, चलो खाने के हिसाब से देख लें कि कुछ बना है, पसंद नहीं है, पर अभी बनाया है, उन्होंने एफर्ट लगाई है मम्मी ने, और हमने खा लिया, तो उनके लिए ये वो न्याय होगा। लेकिन आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो कहाँ न्याय हुआ? तो देखिए, सुविधा के क्षेत्र में जाएंगे तो ऐसे ही मिलेगा एग्जाम्पल।
बढ़िया, ठीक है। देखिए ऐसे ध्यान तो जा रहा हमारा कि मतलब अभी रुचि के क्षेत्र में हम गए। और हाँ, प्रिय हित और लाभ को ना देखते हुए जो स्वीकृति की जाती है वो न्याय है। इससे पकड़ में क्या आया? अभी तो प्रिय हित लाभ को नहीं देखेंगे तो पकड़ में आया, लेकिन देखेंगे क्या? समझौता नहीं, स्वीकृति। हाँ, समझौता नहीं, स्वीकृति, उसको सुख बोला। लेकिन आप बोल रहे हैं कि न्याय क्या है कि प्रिय हित लाभ को ना देखते हुए, तो किसको देखते हुए? न्याय न्याय को देखते हुए। तो न्याय नहीं पकड़ में आया ना। हाँ जी, समाधान में न्याय होता है। हाँ जी, कहाँ से? हाँ, समाधान में न्याय होता है। हाँ, तो न्याय एक प्रकार का समाधान ही है। बढ़िया। और हाँ जी, मानव हित संबंधी लाभ, मानव हित संबंधी लाभ, इसको न्याय कहते हैं। मानव हित संबंधी लाभ नहीं, क्या बोले भैया? क्या बोले आप समझे? हाँ, वो भी नहीं समझे, एक बार और, थोड़ा सा एक बार और बोलिए। मानव हित संबंधी लाभ, आपने बोला ना, इसमें है ना अति लाभ। हाँ, प्रिय हित लाभ जो है, प्रिय हित लाभ है ना। अच्छा, तो ऐसे उसमें मानव का हित संबंधी, और मानव का लाभ, मानवता की बात है इसमें। हाँ ठीक है, मानवता के हित में। हाँ जी, पीछे पीछे माइक मांग रहे हैं। हेलो, कहाँ पर? हाँ जी, में। कहाँ? बीच हाथ में खड़ा करिए एक बार। अच्छा, दो लोगों का शिकायत मुक्त हो जाना ही न्याय है। बहुत बढ़िया। और हेलो, हाँ, पीछे। બોની ભાઈ આ બાજુ हाँ, કદાચ આનો હિન્દી તમારા એમનો કેવું પડશે, હું ગુજરાતીમાં જ આનો જવાબ આપું છું. તો એક પરિવાર હોય એમાં બે ભાઈ હોય, બંને સગા ભાઈ છે. એક પરિવારની બંને સગા ભાઈ છે, એમાંથી એક ભાઈ બીજા ભાઈ ઉપર કદાચ કેસ કરે છે, બરાબર? પોલીસ સ્ટેશનમાં જાય છે, કોઈક એવું કારણ બન્યું છે, કોઈક એવો ઝઘડો થયો છે જેના કારણે બે ભાઈઓ લડાયા છે, બરાબર? અને એ બંને ભાઈઓમાંથી એક ભાઈ જેને કોઈ પણ ગુનો કર્યો નથી, પણ પેલા ભાઈને ફસાવા માટે પેલા મોટા ભાઈ એમને જેલમાં પુરાવરાવે છે, બરાબર? અને પોલીસવાળા પેલો એક ભાઈ અંદર જેલની અંદર છે જ, તો પેલા જે બહાર જે છે એ એમને એમ લાગે છે કે આ બરાબર ગુનામાં ફસાઈ ગયા છે ને આમને મેં બરાબર ફસાઈ દીધા છે ને એમને જેલમાં પૂરી દીધા છે, બરાબર કર્યું છે. બાકી જે સાચી ઘટના એવી છે કે પેલા સામેવાળા ભાઈએ કશું કર્યું જ નથી, તેમ છતાં એ ગુનામાં ફસાઈ ગયા છે અને પોલીસ સ્ટેશનની અંદર જેલમાં પૂરાયા છે. અને પોલીસવાળા આ બંને વચ્ચે સમાધાન કરાવડાવે છે. ખરેખર બંનેને સમજવાની જરૂર હોય છે કે સાચી વાત કઈ છે. તો આમાંથી ન્યાય કઈ રીતે મળે? જે ગુનેગાર નથી એમને તો આ ન્યાય કરીને પોલીસવાળા સમજાવીને પેલું કરાવી દે છે, ન્યાય કરાવી દે, પણ ખરેખર જે ગુનામાં નથી એને તો ન્યાય મળતું જ નથી. बताइए भैया थोड़ा सा। हाँ जी, हाँ, मैं पूरा थोड़ा सा नहीं समझा, आधा तो समझा हूँ। दो भाई हैं, डेफिनेशन की बात नहीं कर रहे, उनका ये प्रश्न है। जैसे दो भाई है तो वो सगे भाई है, और जैसे एक के साथ मतलब गुनाह नहीं किया है फिर भी उसको जेल में डाल दिया, फंसवाया गया है, तो उसके केस में न्याय कैसे होगा? और पुलिस दोनों को मिल करके समाधान करवाती है, कुछ भी, चलो केस होता है या कुछ भी होता है तो पुलिस दोनों को मिलकर समाधान, लेकिन जिस बंदे ने कुछ किया ही नहीं उसको ही जेल में डाल दिया और अभी समाधान हो रहा है, तो उसमें न्याय कैसे हो रहा है? नहीं हो रहा न्याय, नहीं हो रहा है। काम कर रहे हैं, न्याय हो रहा है। अभी तो हम न्याय क्या है उसको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। जब एक बार पहचान जाएंगे तो हम खुद ही डिसाइड कर लेंगे न्याय हुआ कि नहीं हुआ। हाँ जी, हेलो सर, कहाँ पर? या पीछे। हाँ, संबंध में मूल्यांकन ही न्याय है। हाँ, हेलो, ठीक है। और समाधान ही न्याय है। एग्जाम्पल, दो भाई है, बंटवारा हो रहा है संपत्ति का, बड़ा या छोटा, यानी कि जो बड़ा भाई है
वो न्याय करने वाले क्या करते हैं, आधा आधा करते हैं, बराबर। तो छोटा है या बड़ा है, इसमें से कोई भी एक ज़्यादा मांगता है, उसकी ज़्यादा मांगने में स्वीकृति है या उसको सुख मिलता है कि मुझे ज़्यादा मिल जाए तो मैं सुखी रहूँगा। तो जो ज़्यादा देने वाला है वो अपने भाव से, यानी कि अस्वीकृति से नहीं, स्वीकृति से, कि मेरा भाव ऐसा है, मैं उसकी अच्छाई के लिए ज़्यादा देता हूँ, मुझे कोई दुख नहीं है। और जो ज़्यादा लेता है वो भी ऐसे लेगा कि मेरे भाई से मैंने उसको दुखी करके नहीं लिया है, यानी कि उसने मुझे दिया है, मैंने उससे छीना नहीं है कि मेरी भावना मेरी भावना थी कि वो मुझे ज़्यादा दे, लेकिन उसने मुझे अपनी इच्छा से दिया है। मैंने उसको क्या बोलते हैं उसको, गुजराती में रख दीजिए ना। गुजराती में कि अच्छा, गुजराती में भी कोई सब। चालाकी से मैंने उससे लूट नहीं लिया है, यू हाँ, उसकी सम्मति से लिया है। हाँ, तो इसमें भैया क्या लोचा है जानते हैं? मैं बड़ा भाई हूँ और मेरा छोटा भाई है। मैं अपने छोटे भाई को ज़्यादा देना चाहता हूँ, लेकिन मेरी पत्नी नहीं देना चाहती है। मेरा बेटा मना कर रहा है, मेरे ससुराल वाले बोल रहे हैं तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो। वो मतलब तो एक पूरा चैनल है। सही समझ गया। वो भी तो अब क्या होगा, सुन सर, लीजिए एक मिनट। अब क्या होगा, मुझे तो लग रहा मैं न्याय कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ससुराल वाले, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, ये सब कर रहे, क्या कर रहे हो, ये न्याय नहीं है। एक मिनट, वो सब सही है, वो सब मान गए, तो भी एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है कि जो लेने वाला है ना, सही हम देने वाला देता है, लेकिन लेने वालों को दिक्कत होती है कि मैं ऐसा नहीं लूँ, हाँ, मुझे नहीं चाहिए, वो भी दिक्कत होती है। ठीक है, तो कुल मिला के क्या है, आपकी बात से जो हमें ध्यान गया, हम न्याय को अभी सुविधा में ही लाके अटका रहे हैं, सामान में, जमीन में, प्रॉपर्टी में, खाना में, इसमें उसमें, जबकि बोल रहे हैं न्याय एक भाव है। अटका कहाँ रहे हैं, सुविधा में। हाँ जी, इधर दीजिए माइक। हाँ, समझ से समानता की तरफ जाना ही न्याय है। समझ से समानता की तरफ जाना ही न्याय है। बढ़िया। हाँ जी, इधर दीजिए दीदी को। कोई बात उचित हो या नियम के अनुकूल हो, उसे न्याय कहते हैं। उचित हो, नियम के अनुकूल हो। हाँ। बढ़िया, तो नियम ही न्याय है। अच्छा जी, इधर एक माइक दीजिए। आपको कभी, हाँ जी, आपको कभी ध्यान में आया होगा कि न्याय का परिभाषा इतने तरह से आएगा? हाँ सर जी। किसी भी चीज, वस्तु, धन दौलत, जमीन का सही बंटवारा होना, फिर वही यही सुविधा, न्याय है। फिर सुविधा में आ गए। ठीक है, अच्छी बात है। अभी तक तो यही चलता है, अभी तक वही चल रहा है। ठीक है, सरकार ने जो न्याय मंत्रालय बनाया है उसमें भी यही होता है कि जिनको हक नहीं मिला है उनको हक मिल जाए। और हक क्या चीज का, सुविधा का। हाँ जी, हेलो, कहाँ पर? यहाँ पे वो एक बार वो सूरत में जो एक कोर्ट है, हाँ, तो वो जज ने अपना एक अनुभव वो अखबार में एक बार छपवाया था। हाँ जी, कि जब वो बाहर से, जब वो वहाँ पे हफ्ते में एक बार वो जो कोर्ट बनती थी, हाँ, तो गुनहगार को न्याय देने आते थे। हाँ, तो एक बार क्या हुआ कि सुबह में वो जब वो टहलने गए, तो एक वहाँ पे उसने खून करता हुआ एक दृश्य देखा कि एक आदमी का खून हो रहा है, और उसने वो गुनहगार को भी देखा। पर उसको उसका लगा कि चलो कोई बात नहीं, कभी ना कभी ये कोर्ट में किस्सा आएगा, तब देख लूँगा। तो जब वो हुआ क्या, जब वो गुनहगार, जब वो किस्सा कोर्ट में आया ना, तो विटनेस ऐसे बने कि जिसने खून नहीं किया था उसको गुनहगार बनाया गया। हाँ। और उस जज को उस सबूत के आधार पे उसको सजा सुनाई गई। बहुत बढ़िया। ये वो न्याय नहीं हुआ है, न्याय नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों, वो न्याय तो नहीं हुआ? नहीं हुआ तो क्योंकि न्याय अभी पहचाना ही नहीं गया है। हाँ जी, हेलो, जो सर्वसामान्य है और सर्व लोगों को ट्रुथ है, वही न्याय है। बहुत अच्छा, सर्वसामान्य जो ट्रुथ है। हाँ जी, हेलो, न्याय वही करता है
कि जिसमें पात्रता होती है, जो अभी करता न्याय की है। योग्यता, हाँ, अच्छा अभी जो कर, समझ एक मिनट हाँ। अभी नहीं तो फिर सब लोग उस पर बोलने लगेंगे। अभी न्याय कौन करता है कौन नहीं करता उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी न्याय क्या है उसकी बात कर रहे हैं। न्याय स्वतंत्र है, तो जिसमें ये भाव में आके ये किसी के पक्ष में जो देखे बिना जो व्यवस्था के अनुकूल है वो उसे देखकर जो निर्णय देता है वही न्याय है। निर्णय ही न्याय है। बढ़िया। हाँ जी। हेलो। न्याय, मेरे मुताबिक न्याय क्या है कि सत्य की पक्ष में, आपने कहा अभी कि न्याय एक भाव है, तो भाव तो कहाँ से आते हैं? अंदर से। तो भाव अंदर से आया, तो अंदर से जो सत्य है उसके प्रति जो समानता आती है वही न्याय है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो चले आगे। आप सबने बहुत अच्छी अच्छी न्याय की एक परिभाषा ला के दी। जैसे भाई ने अभी शेयर किया कि सूरत में ऐसा हुआ कि जज ने ही देखा था कौन मार रहा है, लेकिन कोर्ट में जज ने उसके पक्ष में फैसला नहीं सुनाया, उसके विरुद्ध नहीं सुनाया। क्यों? क्योंकि वे अपने देश में एक न्याय की देवी होती हैं। वो कैसी होती हैं? आंख पे पट्टी है और हाथ में तराजू है। यह एक व्यवस्था बनाई गई है। तो तराजू में क्या रखते हैं? सबूत और गवाह। जिसके तरफ भारी हो गया उसके पक्ष में निर्णय हो जाता है। न्याय होता है कि नहीं होता है? तो एक्चुअली कोर्ट कचहरी में फैसले होते हैं, जो आप बोले ना निर्णय होता है। तो एक के लिए न्याय हो सकता है और उस जज को ही लगा कि मैं अन्याय कर रहा हूं, लेकिन फिर भी वो डिसीजन दे रहा है, तो जज ही तृप्त नहीं है उससे, उस फैसले से। अगर ऐसी घटना हुई है तो फैसला देने वाला ही उससे तृप्त नहीं है, फिर भी क्या कह रहा है? मैंने न्याय कर दिया। तो फैसला ही है वो। न्याय एक्चुअली मानव और मानव के बीच में होने वाली घटना है। एक मानव और दूसरे मानव के बीच में होने वाली घटना है, उसको बोलते हैं न्याय। तो एक मानव और दो मानव के बीच में क्या होता है? संबंध होता है। एक मानव और दूसरे मानव के बीच में संबंध होता है। संबंध में क्या होता है? मूल्य होता है। कोई न कोई मूल्य होता है, कोई न कोई पूरकता होती है। जैसे माता पिता और संतान संबंध है तो उनके बीच में मूल्य है कि माता पिता अपने बच्चों का खाने पीने का, शिक्षा संस्कार का जिम्मेदारी लेंगे, स्वीकृति के साथ रहेंगे। बच्चे की तरफ से क्या है कि संतान अपने माँ बाप के प्रति कृतज्ञ रहेगा, कृतज्ञता के भाव के साथ रहेगा। यानी संतान के लिए जो उनकी माता पिता ने किया है उसकी स्वीकृति के साथ रहेगा, उसको स्वीकारते हुए रहेगा। तो उसमें मूल्य क्या हो गया भाई? खाने पीने, शिक्षा संस्कार की जिम्मेदारी, उसको नाम दिया है, आगे चर्चा करेंगे, ममता वात्सल्य के साथ। और संतान क्या रहेगा? विश्वास, सम्मान और कृतज्ञता के साथ। तो मूल्य होता ही है। मूल्य विहीन कोई संबंध नहीं है। संबंध में मूल्य होता ही है। मूल्य का मतलब उपयोगिता। तो संबंध में कोई न कोई उपयोगिता होती ही है, कोई न कोई महत्व होता ही है, उसको मूल्य बोलते हैं। तो संबंध में न्याय होता है तो देखेंगे तो संबंध में क्या होता है? मूल्य होता है। अब अपेक्षा क्या है? इस मूल्य का निर्वाह हो। निर्वाह को गुजराती में क्या बोलते हैं? निर्वाह ही बोलते होंगे, मतलब निभाया जाए। हाँ, निभाया जाए। तो संबंध है तो संबंध को निभाया जाए, इसका मतलब क्या है कि संबंध के अंदर के मूल्य का निर्वाह किया जाए। निर्वाह होगा तो क्या होगा? जैसे मैं एक संबंध में जी रहा हूं, उस संबंध में मैंने मूल्य का निर्वाह किया, तो मैं उसका मूल्यांकन कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? हुआ कि नहीं हुआ? निर्वाह हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा मूल्यांकन भी कर पाता हूं। तो संबंध, मूल्य, निर्वाह और मूल्यांकन हो पाता है दोनों पक्ष के तरफ से। मूल्यांकन, इवैल्यूएशन।
जैसे मैं अपने संबंधी के साथ जी रहा हूं, तो मैंने उस संबंध को पहचाना हुआ है। इसका मतलब क्या है कि मैंने उस संबंध में मूल्य को पहचाना हुआ है और मैं उसका निर्वाह करता हूं, निभाता हूं। निभाने के बाद मैं पहचान जाता हूं कि मैंने निभा लिया। अगला भी मेरे साथ संबंध को पहचाने हुए है। संबंध को पहचाने हुए है का मतलब है कि मूल्य को पहचाने हुए है और उसको निभाता है, और निभा के पहचान जाता है कि मैंने निभा दिया, तो दोनों मूल्यांकन कर पाते हैं, तो उभय तृप्ति होती है। उभय, उभय मतलब दोनों पक्ष की, दोनों पक्ष तृप्त होते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं म्यूचुअल फुलफिलमेंट। म्यूचुअल फुलफिलमेंट होता है। इस घटना को बोलते हैं न्याय। तो न्याय दो मानव के बीच में होता है। दो मानव के बीच में संबंध होता है। संबंध का मतलब कोई मूल्य होता है, उसका दोनों निर्वाह करते हैं। दोनों मूल्यांकन भी कर पाते हैं कि निर्वाह, क्योंकि तृप्त कब होंगे? हमने निर्वाह कर दिया, उससे तृप्त नहीं होंगे। निर्वाह करने के बाद मेरे में मूल्यांकन भी हुआ कि मैंने निर्वाह कर दिया, दूसरे का भी मूल्यांकन हुआ कि उसने निर्वाह कर दिया, तो एक उभय तृप्ति होती है, म्यूचुअल फुलफिलमेंट होता है। उसी को बोलते हैं न्याय। ऐसा इस दर्शन में प्रस्ताव किया गया है। आप अपने में जांच के देखिए, ये प्रस्ताव ठीक लगता है कि नहीं लगता है। इससे कम का क्या न्याय होगा? जैसे मैं अपने मित्र के साथ संबंध को पहचाने हुए हूं। तो संबंध को पहचाने हुए का क्या मतलब है कि मैं अपने मित्र के साथ विश्वास सम्मान पूर्वक जी रहा हूं। तो मैं मेरी तरफ से विश्वास सम्मान का निर्वाह कर रहा हूं, मेरा मित्र भी अपनी तरफ से विश्वास सम्मान का निर्वाह कर रहा है, और ऐसा करते हुए दोनों मूल्यांकन भी कर पा रहे हैं कि निभ गया, निभा लिया, निर्वाह हो गया, और दोनों तृप्त होते हैं, यानी वहां न्याय हो गया। तो न्याय पूर्वक जीना होता है, न्याय पाने के लिए जीना नहीं होता। तो कोर्ट कचहरी में फैसले होते हैं, निर्णय होता है, कोई जरूरी नहीं है दोनों सुखी होंगे, दोनों को तृप्ति होगी, कोई जरूरी नहीं है, एक अतृप्त रह सकता है। और ऐसा कोर्ट कचहरी चाहता भी नहीं है कि दोनों तृप्त हो जाएं। तो जैसा बोले कि चूंकि सारे कोर्ट कचहरी में मुकदमे सुविधा के अर्थ में गए हैं, तो सुविधा के अर्थ में एक सुखी होगा, दूसरा दुखी हो ही सकता है। लेकिन हम क्या चाहते हैं? हम ऐसा ही चाहते हैं, हम न्यायपूर्वक जीना चाहते हैं। मैं जिसके साथ संबंध को निभाता हूं, मैं चाहता हूं वो भी मेरे साथ संबंध को निभाए। ऐसा चाहते हैं नहीं चाहते हैं? नहीं, हम ही निभाते रहे खाली, दूसरा हमें धक्के मारता रहे, तो बोलते हैं जी ये संबंध नहीं चलेगा। क्यों? अरे मैं तो निभाता हूं, ये निभाता ही नहीं है। तो मेरे यहां जब शादी विवाह होता था, तो पहले शादी विवाह में कार्ड बांटना एक बड़ा काम होता था, अब भी होता है कि रिश्तेदार जो होते हैं ये बड़ी ऊंची चीज होते हैं। आज व्हाट्सएप के जमाने में अगर कार्ड की फोटो खींच के आप रिश्तेदार को भेज दीजिए, भाई कार्ड का मतलब क्या, सूचना ही है, फोटो खींच के भेज दीजिए और नीचे लिख दीजिए विवाह है, इस डेट पे है, आपके आगमन की प्रतीक्षा रहेगी, आपसे करबद्ध निवेदन है, आप सपरिवार पधारें। वो स्वीकारता ही नहीं है, बोलता नहीं मेरे दरवाजे पे आके नहीं कहे। तो क्या होता था कि हम लोग कार्ड देने जाते थे, तो अपने ऐसे ही रिश्तेदार के, एक दूर के रिश्तेदार हमारे हुआ करते हैं। अयोध्या तो खैर आप सब जानते हैं, अयोध्या इस समय थोड़ा हॉट न्यूज में भी है, तो अयोध्या के पास ही वो रहते हैं। मेरा घर भी अयोध्या से 60-70 किलोमीटर दूर ही है। तो उनको कार्ड देने गए तो बोलते हैं, देखो बुजुर्ग हो गए थे, अभी ये घटना 8-10 साल पहले की है, तो बोलते देखो बेटा, मैं तो इस संबंध को बनाए रखना चाहता हूं, मैं निभाना चाहता हूं इस संबंध को, क्योंकि काफी समय से चला आ रहा है। हमने कहा अच्छी बात है। इतने में उनका बेटा आके बैठा, जो मुझे नहीं पहचानता था, मैं भी उसे अनुमान लगाया कि इनके बेटे होंगे। फिर उनके नाती पोते जो छोटे थे वो आकर के बैठे, खेलते रहे, बाबा से कुछ छीनते रहे, कुछ चिढ़ाते रहे।
हमको भी अपना पानी आया, चाय आया, पानी चाय पिए और हमने कहा चले प्रणाम, बोले हाँ जी चलिए, आऊँगा जरूर। मैं चला आया तो मैं अपने चाचा जी के साथ गया था। तो मैंने चाचा जी से कहा ये संबंध नहीं निभेगा। बोले नहीं, देखो बोल रहे थे कि निभाएंगे। हमने कहा क्या निभाएंगे, अपने बेटे से हमारा कोई परिचय ही नहीं कराया, अपने नाती पोती से हमारा परिचय ही नहीं कराया, ये कौन है कौन नहीं है, क्या संबंध है, कुछ परिचय ही नहीं कराया, ये क्या निभेगा संबंध। भाई ये पता नहीं कब चले जाएं, इनकी उम्र भी 75-80 साल होने वाली है, अगली पीढ़ी से परिचय ही नहीं कराया उन्होंने, तो क्या होगा, निभेगा ही नहीं। तो क्या बोलते हैं, हम संबंध को निभाना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं होता। संबंध दोनों पक्ष से निभता है तभी वो पूरा निभता है, नहीं तो ऐसे संबंधों में अधूरेपन के साथ हम जीते हैं। हम सभी जांच के देखें, हम जितने संबंधों में जी रहे हैं, अपने निकटतम संबंध का भी हम निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं, या मैं करने की कोशिश करता हूं, दूसरा निर्वाह नहीं कर पा रहा है, क्योंकि निर्वाह का पैमाना है उभय तृप्ति, म्यूचुअल फिलफिलमेंट, उभय सुख, दोनों सुखी हो रहे हैं, दोनों तृप्त हो रहे हैं, तब न्याय होता है। तो अभी हमारे दुखी होने का कारण ही है कि संबंध का दोनों तरफ से निर्वाह नहीं हो रहा है, दोनों तृप्त नहीं हो पा रहे हैं, यानी न्याय नहीं हो रहा है। अब मैं समझदार हो गया, मैं न्याय को पहचान गया, मैं मूल्य को पहचान गया, मैं आपके साथ जीने की कोशिश कर सकता हूं, तो मैं अपने तरफ से ठीक हूं, मैं संबंध का निर्वाह कर रहा हूं, लेकिन तृप्त तब तक नहीं होगा, दोनों तृप्त तब तक नहीं होंगे जब तक दोनों पक्षों से नहीं होगा। तो क्या मिला, कहां ध्यान गया, न्याय संबंध में घटने वाली घटना है, कोर्ट कचहरी में घटने वाली घटना नहीं है, पुलिस थाने में घटने वाली घटना नहीं है। तो एक न्यायमूर्ति हुए, देश के मुख्य न्यायाधीश रहे एम वेंकटचलैया जी, उनका अभी 30 अक्टूबर को निधन हुआ है। वो कर्नाटका के रहने वाले थे। तो जब वो कर्नाटका हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, तो इस दर्शन के जो प्रणेता हैं आदरणीय नागराज जी, वो भी कर्नाटका के ही रहने वाले हैं, मूल निवास कर्नाटका का ही है। तो उन्होंने सुन रखा था कि एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सब चीज़ों पे, संबंध पे, अन्य चीज़ों पे बात करते हैं। तो वो उनको बुलाए, बोले मैं कोर्ट कचहरी के अच्छे वकील और जज को अपने यहाँ बुलाता हूँ और आप न्याय पे अपनी बात को रखिए। तो बेंगलोर में आदरणीय नागराज जी कोर्ट कचहरी के उन वकीलों के साथ और न्यायमूर्ति वेंकटचलैया जी के साथ, अन्य जज के साथ 4-5 दिन तक बात करते रहे तो वहां 22-23 दिन तक वेंकटचलैया जी उनके साथ 22-23 दिन तक बातचीत की है। अंत में सभी निष्कर्ष निकाले कि कोर्ट कचहरी में किसी को भी न्याय का पता नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो 3-4 दिन 5 दिन तक न्यायाधीशों की बैठक चली उसमें निकल करके आया, न्याय का पता नहीं है, हम तो केवल फैसले करते हैं और फैसले का आधार सबूत होता है, गवाह होते हैं। मेरा कोई, मैं कितना विद्वान हूं, जैसे इन्होंने केस स्टडी रखी, अब वो जज कितना भी विद्वान हो, उसके सामने ही कत्ल हुआ था, उसने देखा भी किसने मारा है, लेकिन सबूत और गवाह क्या कह रहे हैं, उसने नहीं मारा है। न्याय होगा? नहीं होगा, फैसला हो जाएगा। उस फैसले से वो भी तृप्त नहीं है, जिसके विरुद्ध हुआ वो भी तृप्त नहीं है, और जो बच गया वो भी तृप्त नहीं है। मजे की बात यह है, जिसने कत्ल किया और बच गया वो भी तृप्त नहीं है, वो अंदर किसी भय के साथ, किसी अतृप्ति के साथ बना रहेगा, पूरी जिंदगी बना रहेगा। तो ऐसे तृप्ति होती नहीं है, तृप्ति संबंध में होती है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि जैसे ही मेरे में तुलन की दृष्टि में न्याय आता है, मेरा विश्लेषण पूरा का पूरा बदल जाता है, पूरा विश्लेषण बदल जाएगा, पूरी दृष्टि मेरी न्याय की हो जाएगी। तो प्रिय हित लाभ न्याय में समा जाएगा, छूट नहीं जाएगा। हाँ, नहीं तो आप डर जाएं कि मेरे प्रिय का क्या होगा, मेरे हित का क्या होगा, मेरे लाभ का क्या होगा। तो ऐसा नहीं होता है, इससे नियंत्रित हो जाता है, इसमें समा जाता है। मतलब वही चीज है, संबंध मूलक होते हैं तो रुचि नियंत्रित हो जाती है,
लक्ष्य मूलक होते हैं तो संबंध और रुचि नियंत्रित हो जाती है। तो न्याय में प्रिय हित लाभ समा जाते हैं, अर्थात मेरी दृष्टि में न्याय आता है तो मेरा जो प्रिय हित लाभ है वो नियंत्रित हो जाता है और मैं तृप्तिदायक जीने लगता हूं। तो एक सूत्र निकल के आता है, पवित्र विचार ही मनोबल है। क्या सूत्र है? पवित्र विचार ही मनोबल है। अब पवित्र विचार, विचार किसको बोल रहे हैं? देखिए, सूत्र बोल के हम भगने वाले नहीं है, सूत्र पे भी चर्चा करेंगे। विचार किसको बोल रहे हैं? विश्लेषण को। ये पवित्र कब होगा? जब दृष्टि न्याय की होगी। मेरा विचार पवित्र कब होगा? जब तुलन की दृष्टि न्याय की होगी। ऐसा होने से मेरा आस्वादन बदलेगा। अब मेरा आस्वादन लक्ष्य मूलक, संबंध मूलक की तरफ जाएगा। ऐसी दृष्टि में मेरा मन ताकतवर होगा, यानी मनोबल होगा, मन का बल बढ़ता है। तो विचार पवित्र होगा का मतलब तुलन की दृष्टि, न्याय की दृष्टि होगी, इससे मेरा आस्वादन बदलेगा, अर्थात मेरे मन की ताकत बढ़ेगी, तो मैं मनोबल के साथ होऊंगा। तो सूत्र लिखा, पवित्र विचार ही मनोबल है। कैसा है? कैसा? कितना बढ़िया? अब आप भूल रहे हैं थोड़े। बढ़िया? हाँ। तो देखिए जीवन क्रिया को कैसे धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि मेरे में ही चल रही है, लेकिन मैं आज तक बेहोशी में जिया, मुझे दिखती ही नहीं है। तो ध्यान दिलाया जाता है, धक्का मार मार के, धक्का मार मार के, तब भी ध्यान कहीं और चला ही जाता है। तो क्या सेट हुआ? अभी केवल इतना ही सेट हुआ कि मेरा जो तुलन का दृष्टि है वो न्याय की होती है, धर्म की होती है और सत्य की होती है। तो मेरा तुलन पूरा होता, अब आधा नहीं रह गया, मेरा तुलन पूरा होता है। धर्म की दृष्टि का मतलब क्या हुआ? ये व्यवस्था ही धर्म है। अब मेरी दृष्टि धर्म की हो गई का मतलब ये हुआ कि मैं इस पूरकता को ध्यान में रख करके अपने सारे तुलन करता हूं, अपने सारे विश्लेषण करता हूं, तो मेरा ऐसा आस्वादन होता है और मेरा कार्य व्यवहार फिर वैसा बदल जाता है। अभी हम क्या करते हैं? कार्य व्यवहार को बदलने की कोशिश करते हैं। अच्छा ऐसे कर रहे हो? नहीं नहीं, अब ऐसे करो। अब ऐसे कर रहे हो? नहीं, इसको ठीक नहीं, अब ऐसे करो। तो कार्य व्यवहार को बदलने की कोशिश से कार्य व्यवहार नहीं बदलता। कार्य व्यवहार का मतलब चयन के बाद होता है। उसके पहले का सॉफ्टवेयर तो वही है पुराना 1947 वाला, करप्टेड एंड पायरेटेड। सॉफ्टवेयर कौन सा है? वर्जन 1947, करप्टेड एंड पायरेटेड। और हार्डवेयर उससे हम चलाना चाहते हैं। नहीं, ये बदल दो, म्यूजिक बॉक्स बदल दो, इसका प्लेट बदल दो, इसकी स्क्रीन बदल दो, कुछ भी बदल दो, सॉफ्टवेयर नहीं बदलोगे कुछ नहीं होगा। हमको सॉफ्टवेयर पे काम करना है। जैसे राष्ट्रीय स्वच्छता कार्यक्रम, तो ये स्वच्छता मानसिक चीज है कि भौतिक चीज है? हाँ जी, स्वच्छता एक मानसिक क्रिया है कि भौतिक क्रिया है? झाड़ू लगाने से स्वस्थता आती है बाहर कि अंदर झाड़ू लगाना है? तो बाहर झाड़ू लगा दिए, अंदर का झाड़ू लगा नहीं। बाहर तो गंदा होने में कोई टाइम थोड़ी लगेगा, एक झटके में हो जाएगा। अंदर वाली गंदगी बनी हुई है, बाहर वाली गंदगी कभी भी हो जाएगी। तो जब तक आप देखेंगे तब तक मैं कूड़े को बड़े करीने से कूड़ेदान में डालूंगा। कोई नहीं देख रहा तो धीरे से पीछे हाथ करके गिरा दूंगा, क्योंकि मेरे यहां तो सफाई हुई नहीं है। चाणक्य, ठीक है? हाँ, चाणक्य नीति आजकल एम्स में, उसमें IIM में पढ़ाई जाती है। तो क्या हो गया? दृष्टि मेरी धर्म की होगी, अर्थात ये धर्म है। न्याय को कहां देखा? मानव और मानव के बीच में। धर्म कहां पकड़ में आता है? ये धर्म है। पदार्थ अवस्था का धर्म है, पेड़ पौधों का धर्म है,
पशु पक्षी का धर्म है, मानव का धर्म है, तो धर्म निरपेक्षता क्या है? मैं सबको अपने धर्म में बने रहने दूं, सब अपने धर्म के साथ रहें, यही धर्म निरपेक्षता है। अर्थात पदार्थ अवस्था अपने धर्म के साथ रहे, जैसा है वैसा बना रहे, पानी जैसा है वैसा बना रहे। हम उपयोग करें लेकिन पानी के कैरेक्टर से छेड़छाड़ न करें। हवा जैसा है वैसा बना रहे, मिट्टी जैसी है वैसी बनी रहे। मिट्टी जैसी है वैसी बहुत देती है हमको, लेकिन हमको पता नहीं है कितना चाहिए कितना चाहिए कितना चाहिए, तब हम छेड़छाड़ कर रहे हैं। बीज जैसा है वैसा बना रहे, अभी हमने बीज से इतनी छेड़छाड़ कर दिया है कि बीज पे संकट आ गया। मौलिक बीज खत्म हो रहे हैं, धीरे धीरे लोगों के पास नहीं मिल रहे हैं। ये तो धन्य है कुछ संस्थाओं का। एक संस्था है नवधान्या, उसको वंदना शिवा चलाती हैं। सत्यमेव जयते में एक बार आई थी आमिर खान से बात करने के लिए। वो देहरादून में उनकी संस्था है नवधान्या। उनका काम है कि वो गांव गांव में उनके लोग जाते हैं और बोलते हैं आपके पास कोई मौलिक बीज बचा है, धान का, गेहूं का, मक्के का, उसको हमको दे दीजिए, 10 दाना ही हो तो दे दीजिए। वो अपने संस्था में ले जाते हैं, वहाँ उनकी थोड़ी खेती बाड़ी है, उसमें उसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसको ज्यादा करके रखते हैं, बोलते हैं जब जरूरत होगी हमसे ले लीजिएगा 1 किलो 2 किलो, लेकिन अगर बचा हो तो दीजिए। तो मौलिक बीज ही खत्म हो रहे हैं, सब वही बीट मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज के साथ क्या है कि उनकी परंपरा नहीं बनती, मतलब बीज से बीज पैदा नहीं होता। उस बीज को आप पैदा करेंगे तो आप उपयोग तो कर लेंगे, लेकिन उसको फिर अगर लगाने जाएंगे तो पैदावार नहीं होती, बहुत कम घट जाता है। बहुत सारा बीज उगता ही नहीं, उगता है तो उतना पैदा नहीं होता। इसलिए हर साल आपको बीज बाजार से खरीदना पड़ता है। यह है बाजार का षड्यंत्र कि किसान को बीज के लिए बाजार पे डिपेंड कर दो, किसान को खाद के लिए बाजार पे डिपेंड कर दो, किसान को कीटनाशक के लिए बाजार पे डिपेंड कर दो। इससे क्या होगा? तो जो ये हिमांशु जी कह रहे थे कि खेती कोई करना नहीं चाहता है तो सुविधा कैसे पर्याप्त है, इससे क्या होगा? किसान खेती छोड़ देगा, किसान खेती छोड़ देगा तो कौन खेती करेगा? जो बीज बना रहे हैं वो खेती करेंगे। मैंने दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी कारपोरेट, तो कोई करेगा। तो हमने क्या किया? हम इसके धर्म के साथ खिलवाड़ किए, पदार्थ अवस्था के, तो हम धर्म निरपेक्ष हो पाए? नहीं हो पाए। पेड़ पौधों का धर्म क्या है? पुष्टि। वो बढ़ना चाहते हैं, खिलना चाहते हैं, फल आते हैं, फूल आते हैं। तो बीज की यात्रा बीज तक, एक बीज की यात्रा कहां तक है? बीज से शुरू होकर बीज तक। एक बीज लगाएंगे और वो पौधा, पेड़ पौधा, फूल फल होते हुए बीज बनाता है, यानी अपनी परंपरा को प्रमाणित करता है। बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज, बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज, ये साइकिल चलती रहती है और हमारे पास पेड़ पौधे रहते हैं। यही उनका धर्म है। हम अगर पेड़ को बढ़ने नहीं दे रहे हैं, उसको काट दे रहे हैं, उसके बीज में छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? इनके धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो हम कहाँ धार्मिक हैं? हम धार्मिक भी नहीं है, धर्मनिरपेक्ष भी नहीं है। जीव जंतु क्या है? जीना चाहते हैं, जीने की आशा के साथ है। अब इनके साथ कैसे धर्मनिरपेक्ष रहेंगे? उनके उस धर्म को बनाए रखा जाए। मानव का धर्म क्या है? तो मानव का धर्म सुख है। तो जब भी मानव के साथ व्यवहार करें तो हम धार्मिक कब हैं? कि हमको यह ध्यान है कि ये भी मानव है, इसका भी धर्म सुख है, मैं भी मानव हूँ, मेरा भी धर्म सुख है, विश्वास है, सम्मान है, कृतज्ञता है, श्रद्धा है। तो मैं इसके साथ व्यवहार करते समय इन मूल्यों का ध्यान रखता हूँ, तो मैं धार्मिक रूप से मानव के साथ जी रहा हूँ। तो मेरी दृष्टि में धर्म आता है। हाँ जी, देख गया। आप काफी देर से उठा रहे हैं क्या? तो मेरी दृष्टि में धर्म है। तो मेरी दृष्टि में जब न्याय आता है, मेरी दृष्टि में जब धर्म आता है, तो मेरे विचार बदलते हैं, मेरा विश्लेषण बदलता है, मेरे विचार में गुणात्मक परिवर्तन होता है, क्वालिटेटिव चेंज होता है। मेरे विचार में गुणात्मक परिवर्तन होता है तो फिर कोई बदल नहीं पाता गुणात्मक परिवर्तन को। तो मेरे में जब गुणात्मक परिवर्तन होगा तो मेरा आस्वादन बदलेगा, अपने आप बदलेगा। ऐसे आस्वादन बदलेगा तो मेरा चयन बदलेगा, यानी मेरा कार्य व्यवहार बदलेगा।
वो कार्य व्यवहार मेरे लिए भी सुखदायी होगा, दूसरे के लिए भी सुखदायी होगा और प्रकृति के लिए पूरक होगा। ऐसा ही हम चाहते हैं, मेरी चाहना में है, योग्यता नहीं हो पाई है। ऐसी सभा में बैठते हैं, हमारा ध्यान जाता है तो मेरी योग्यता बढ़ने की संभावना होती है। बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। चाय का संकेत हो गया है, चाय पी के मिलते हैं।